So you have to be very strong at that कि अगर सिम्टम आ रहा है तो हमें क्या करना है उस समय में. दैट इज इम्पोर्टेंट. बस बाकी तो फिर वो अपने आप ही चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी क्योंकि सिम्टम आएगा. एंड बिकॉज उसके लिए व्हाट यू वुड नीड इज द बॉडीज रिक्वायरमेंट वुड बी दैट यू आर टेकिंग रेस्ट ऑल्सो, राइट? Yes, Sanjay ji, you want to ask something or I shall go with the presentation and after the presentation you will ask. Yes. Go ahead, Ayushi. I'm more or less done. मेरा भी यही हो रहा है कि मेरी शुगर बढ़ रही है, इवन समटाइम्स 250. हालांकि मतलब मेरा थोड़ा सा वेट कम हुआ है लेकिन शुगर फिर भी बढ़ रही है. कोई बात नहीं, अभी बढ़ने दीजिए. 280 तक जा रही है. 280 क्योंकि is मैंने दवाई बिल्कुल PP. दवाई बंद कर दी है. PP is going to 80. Yes. And what are you eating before that? मतलब जैसे पपाया, फ्रूट्स, ऑरेंज. तो उसके बावजूद मतलब No, are you eating like mixing the fruits and eating at once? मतलब काट के ना प्लेट में डाल के. हाँ. तो मिक्स मत करिए, फ्रूट्स को मिक्स मत करिए. एक टाइम पर एक ही फ्रूट खाइए, एक तरह का ही फ्रूट खाइए एंड रिड्यूस द क्वांटिटी अ लिटिल बिट. अभी मैं आपको समझाती हूँ ना, आपको उससे प्रेजेंटेशन से काफी कुछ समझ में आएगा. ओके, तो ठीक है. आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअली व्हाट यू मस्ट बी डूइंग, राइट? ओके. Okay. So today what we are going to see is that how the toxins which are getting accumulated in our body is affecting our metabolism. Okay. So our body cells are metabolically flexible, right? But when we are accumulating a lot of toxins, then what is happening? It has become metabolically inflexible. And this is the root cause of all the diseases, especially in the case of type 2 diabetes, right? So here I'm going to play a video. All of you just watch this video and then after that, I will explain it. अगर कुछ नहीं समझ में आता है, then I will explain it. Okay, just watch the video first. As a metabolic glucose to accumulate in blood rather than being used as fuel by the cells. When we eat, food is broken down by our digestive system. Nutrient molecules that are there. So when we train our digestive tract, trains from the body. Ayushi ji, we cannot hear anything. It's not clear. Wait, can others hear the voice or it's not audible? No, it's not audible. Okay. It's breaking. Okay, so no problem. I will explain it. ऐसा जो मैं ये बताता हूँ. आपने ना जब वीडियो दबाया ना, उसमें नीचे दो क्लिक करने के लिए ना, जब शेयर स्क्रीन दबाते हैं तो नीचे दो हैं, एक ऑडियो एक वीडियो के लिए. उन दोनों को क्लिक करना है आपको. वो आपने क्लिक नहीं किया. I need to stop share and start reshare, right? Yes. Okay, wait there. Let me do it again. Okay, share sound option is coming. है? Yes, share sound, share video दोनों हैं. ठीक है. दोनों को क्लिक कर दें. Yeah. Okay, now I think it will. Thank you so much. Now audible? Type 2 diabetes is a metabolic disorder that causes sugar, in the form of glucose, to accumulate in the blood rather than being used as fuel by the cells in our body. When we eat, food is broken down by our digestive system into nutrient molecules
that are then absorbed through our digestive tract for use by the body. Foods containing carbohydrates or various sugars are broken down into glucose. Glucose is an important source of fuel for many organs in our body. However, to be able to use the glucose for fuel, the glucose molecule must first enter into the cell. The pancreas produces a hormone called insulin, a chemical messenger essential for the entry of glucose into cells. As the blood glucose levels rise after a meal, insulin is released into the bloodstream and sets processes in motion to trigger the removal of glucose from the blood to enter into the cells. In type 2 diabetes, the cells become resistant to insulin and ignore its message to absorb glucose. This is known as insulin resistance. Now I'm stopping here and I want to explain you a little bit. Now you see ki normally what was happening, that insulin was attaching to the insulin receptors and then glucose जो है वो अंदर जा पा रहा था, ठीक है. लेकिन अभी क्या हो गया है, यहाँ पर सेल्स जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए. नाउ व्हाट इज दिस, ये यहाँ पर क्या ऐसा हो गया कि ग्लूकोज अंदर नहीं जा पा रहा है और रिसेप्टर पर ये रिसेप्टर पर इंसुलिन अटैच नहीं हो पा रहा है. इट्स जस्ट द डिपोजिशन ऑफ फैट. जो फैट डिपोजिशन हो गया है बिकॉज वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा फैट इन अवर डाइट विच इज नॉट रिक्वायर्ड. वेदर हम कहें कि हमें नट्स एंड सीड्स खाना है, या बहुत सारे लोग नॉन वेज फूड खा रहे होते हैं. जो ज्यादा नॉन वेज फूड खाता है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा जल्दी होता है, ठीक है, बिकॉज दैट फूड इज नॉट डिजाइन फॉर अवर बॉडी. हमारे बॉडी के लिए नहीं बना है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती एंड वो फैट अक्यूमुलेट करती जाती है. सो नाउ देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन अवर बॉडी, है ना, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं. आपके एक सेल से ये इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है डायबिटीज होने के 7-8 साल पहले ही, ठीक है. जब आपका वेट थोड़ा सा भी ज्यादा है और आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड पीपल आर नॉर्मलाइजिंग इट दीज डेज ना, कि हाँ थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही, या हमारे दिमाग में एक वो है कि नहीं हम थोड़े से तो हेल्दी होने चाहिए, थोड़े मोटे होने चाहिए, ठीक है, विच इज वेरी रॉन्ग. क्योंकि वो अक्यूमुलेट क्या हो रहा है आपके गलत खाने की वजह से, कुक फूड की वजह से, ऑयल की वजह से, ये सारी चीजें आपके सेल मेटाबॉलिक सिस्टम को गड़बड़ कर रही हैं, इसलिए अब इंसुलिन अंदर जा ही नहीं पा रहा है. तो ये कहानी एक सेल से शुरू होती है और जब बॉडी के मोस्टली सारे सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं तब अब ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, वापस इसी, ये जो ब्लड स्ट्रीम ऊपर है ना, वापस इसी में चला जाएगा. एंड फिर अब आप जब भी चेक करोगे शुगर लेवल्स तो वो हाई आएंगे. इसका मतलब क्या है कि आपको खाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी आपके शरीर का ये ग्लूकोज क्लियरेंस तो हो, पहले ये क्लियरेंस ही नहीं हो रहा है, राइट. नाउ लेट्स सी आगे क्या है, देन आई विल एक्सप्लेन द अदर पार्ट आल्सो. In addition, in type 2 diabetes, the pancreas is unable to produce the greater amounts of insulin needed to trigger these resistant cells to take in glucose from the bloodstream. Now, the most notable symptom of ऐसा क्यों होता है? अब ये पैनक्रियाज जो है हमारा, ये इंसुलिन प्रॉपर क्यों नहीं क्रिएट कर पाता है, ठीक है. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो. जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ. हाँ, तो जब क्या होता है ना, हमारे ब्लड में केवल 5 ग्राम्स ग्लूकोज रह सकता है, 5 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में पूरे. तो अब ये जैसे ही 5.1 ग्राम्स होता है तुरंत एक सिग्नल जाता है पैनक्रिया को, और पैनक्रिया जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ गया है ब्लड स्ट्रीम में, अब हमें इसको हटाना है, राइट. बट वो कोशिश करता है, पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता रहता है, बट आगे का क्लियरेंस नहीं है. जैसे कि आपने अभी देखा वीडियो में कि आगे सेल्स के अंदर ही ग्लूकोज नहीं एंटर कर पा रहा है, तो वो बार बार क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जा रहा है. एंड ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, हम और खाना खा ले रहे हैं, है ना, हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ खा ले रहे हैं, या हमको लग रहा है कि
हमने खाया नहीं, तो हम फ्रूट पे डाइट पे भी हैं तो हम फ्रूट भी ज्यादा खा ले रहे हैं, जबकि रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल इज हाई, you don't require food. This is the clear indication of the body. This is what we have to understand, right? तो फिर पैनक्रियाज आर वर्किंग डे एंड नाइट। यू सी कि पैनक्रिया तो हमारा जो है वो दिन रात काम ही कर रहा है बेचारा, उसको तो रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। वेयर इट शुड बी रेस्टिंग, इट्स नॉट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, वो तो काम ही, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता जा रहा है, करता जा रहा है। सो व्हाट हैपेंस, पैनक्रियाज बिकम एग्जॉस्टेड। ठीक है, और जब वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं तो फिर वो सिग्नल लेना बंद कर देते हैं, एंड फिर वहां के सेल्स आपके वो कम इंसुलिन का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि द सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर, द बीटा सेल्स, दे स्टार्ट्स डाइंग, क्योंकि वो थक जाते हैं काम करते करते, एंड दे स्टॉप टेकिंग द सिग्नल्स। Oh, what has happened? Wait, let me start it again. I think. Okay, यहाँ तक समझ में आया ना सबको? I will start it again. Don't worry. ये टाइप 2 डायबिटीज में पूरा इंसुलिन बन रहा होता है क्या, नॉर्मली जितना बनता है, हाँ, कि कम बन रहा होता है? टाइप 2 डायबिटीज में धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना, वो इंसुलिन कम बनने लगता है। मतलब अगर किसी को पता चलता है और वो तुरंत फ्रूट्स में आ जाए तो उसका पैनक्रियाज रीजनरेट हो जाएगा? बिल्कुल, तुरंत पता चले 10 साल बाद, क्यों हम कहते हैं कि अगर आप फ्रूट डाइट करोगे तो आप 10-15 साल बाद भी आपको पता चले। पहले हम ये देख लेते हैं, आवाज आ रही है ना वीडियो की? हाँ। ओके, ठीक है, ये देख लेते हैं फिर हम बात करते हैं। Other symptoms include weakness, drowsiness, and blurred vision. These are caused by chemical imbalances in the body and to high levels of blood glucose. About 1 in 4 people are unaware. Ayushi ji, again the video and audio are not coming. हाँ, वीडियो तो नहीं दिख रही मैम। वेट वेट वेट, आपको उसको चला के स्क्रीन शेयर दोबारा करना पड़ेगा, और उसमें जो मीडिया प्लेयर है वो वाला स्क्रीन यूज करें, उसको शेयर करें। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। वो सब तो selected है, I think network issue because my Jio fiber is not working today properly. ठीक है ना, now it will come. In type 2 diabetes, the cells become resistant to insulin and ignore its message to absorb glucose. This is known as insulin resistance. In addition, in type 2 diabetes, the pancreas is unable to produce the greater amounts of insulin needed to trigger these resistant cells to take in glucose from the bloodstream. The most notable symptom of diabetes is frequent urination and excessive thirst. Other symptoms include weakness, drowsiness, and blurred vision.
These are caused by chemical imbalances in the blood related to high levels of blood glucose. About 1 in 4 people with type 2 diabetes are aware that they have the disease. It is important to catch diabetes early. Over time, high blood glucose damages the blood vessels, which can damage the organs that these vessels supply, leading to a variety of health complications. Damage to the small or micro blood vessels can cause vision problems, including loss of sight, nerve damage, and kidney disease. Damage to larger or macro blood vessels can lead to cardiovascular complications such as heart disease, stroke, and poor blood circulation. Overweight and inactivity are major causes of diabetes. A family history of diabetes significantly increases your risk of developing the disease. Certain ethnic populations are also at increased risk of developing type 2 diabetes. Finally, some medications may increase your diabetes risk, specifically corticosteroids, thiazide diuretics, drugs used to treat certain mental illnesses, and some antiretrovirals used to treat HIV infection. In summary, type 2 diabetes is a metabolic disorder. It causes sugar, in the form of glucose, to accumulate in the blood rather than being used as fuel for the cells in our body. If not diagnosed and treated in a timely manner, type 2 diabetes can lead to many health complications. बस ना, बस यही था इसमें। कुछ पूछना है इसके बारे में किसी को जो भी वीडियो देखा? नहीं? ठीक है, तो हम फिर आगे चलते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी, अनंत जी? हेलो? आ रही है। हाँ आ रही है। ठीक है, ठीक है, ओके, सही है। ओके तो अब फिर इसमें हमने देखा ना कि एक्चुअली में डायबिटीज क्या है। दैट मीन्स कि डिमांड और सप्लाई वाला रिलेशन है। अगर आप बॉडी को एक्स्ट्रा खाना दे रहे हो तो आपके पैनक्रियास को काम करना पड़ेगा। और जब आप अभी जान गए हो आपको डायबिटीज है और आपको पता चल गया है कि मेरी बॉडी में ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो रहा है अननेसेसरली और उसको हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं या बॉडी उसको रिमूव नहीं कर पा रही है, तो ऊपर से एक भी चीज खाने का कोई मतलब नहीं बनता। दैट मीन्स यू आर जस्ट ओवरबर्डनिंग योर बॉडी, है ना। आपको सिर्फ पानी पीना चाहिए। अगर इसीलिए कहते हैं ना हम कि अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है या किसी को डायबिटीज है तो उसको तो स्टार्ट ही पानी से करना चाहिए। उसको सिर्फ और सिर्फ पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी ग्लूकोज अक्यूमुलेटेड है आपकी ब्लड स्ट्रीम में, जो आपके माइक्रो वेसल्स को और सारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा रहा है, वो क्लियर तो हो। एंड दैट कैन बी क्लियर्ड आउट। अगर आप सिर्फ पानी पियोगे तो वो क्लियर आउट हो जाएगा, क्योंकि सेल्स रेजिस्टेंट हुए हैं लेकिन 100% नहीं हुए। तो जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर धीरे धीरे वो क्लियरेंस करने लगेगा। ओके, एंड ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सिंगल सेल ऑफ द बॉडी टू कैरी आउट इट्स बॉडीली फंक्शंस। जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ग्लूकोज के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज अ वेरी बेसिक थिंग। जितने भी हमारे बॉडी में प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सब मेटाबॉलिज्म ही है ना। कुछ एंजाइम रिलीज हो रहा है, कहीं होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रहा है, कहीं प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन रहा है, कहीं ग्लूकोज से आपका एनर्जी सिंथेसिस हो रहा है, राइट, कहीं ग्लिसरॉल से लिपिड सिंथेसिस। क्वेश्चन पूछना था मैम। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, बस मैं ये कंप्लीट कर लूं। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो ये जितनी भी ब्लू लाइंस हैं ये कैटाबॉलिज्म शो करती है। कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग। ठीक है, आपने फूड इंटेक किया, वो प्रोटीन्स में टूटा एंड वो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स में टूटेगा एंड फिर उस अमाइनो एसिड से आपका प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ऐसा नहीं है कि, इसीलिए कहते हैं ना कि मसल्स बनाने के लिए किसी जानवर का मसल खाने की जरूरत नहीं है आपको।
आपको अमाइनो एसिड चाहिए, अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनेगा और बॉडी अपना अमाइनो एसिड खुद बनाती है। ठीक है, तो आप अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रोटीन खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, स्प्राउट्स खा रहे हैं, एग खा रहे हैं, और जो चीजें मतलब नहीं खानी चाहिए वो खा रहे हैं, तो बॉडी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है, किडनी पे लोड पड़ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड पड़ रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। और कभी आपका प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा उसकी वजह से। ठीक है, देन एनाबॉलिज्म क्या होता है? ये येलो लाइंस जो है, अमाइनो एसिड से बॉडी खुद से अपना प्रोटीन बना के मसल आपका बना रही है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर मसल। ठीक है, अब ये जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं शरीर में, ये सब बहुत सारे स्टेप्स में होते हैं, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस एंड दे ऑल आर इंटरलिंक्ड, राइट? एंड दे आर ऑल आर मोस्टली एंजाइम मीडिएटेड, कुछ ना कुछ एंजाइम रिलीज होता है एंड तब वो होता है। लाइक हम अगर डाइजेशन की बात करें तो स्टमक में कुछ एंजाइम्स होते हैं, देन इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स होते हैं, स्टमक में थोड़ा सा डाइजेशन होता है, ये ब्रेकडाउन जो है फूड इनटेक का ये होता है, और इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन होता है ना सारे न्यूट्रिएंट्स का। एंड दे आर ऑल्सो कोऑर्डिनेटेड एंड रेगुलेटेड। इसीलिए क्या होता है, जब आपको डायबिटीज होती है तो खतरा रहता है कि आपको बीपी भी हो सकता है, आपका थायराइड भी बढ़ सकता है, या किसी को थायराइड होता है तो क्या हो जाता है कि आपको बाकी भी चीजें हो सकती है ना? हाँ, कौन पूछ रहा था? कुछ पूछना चाह रहे थे ना? यस मैम, मैम शिवम उपाध्याय। हाँ, पूछो। मैम मुझे ना कॉन्स्टिपेशन रहता है, मैम पेट साफ नहीं हो पाता है, और मैम लेफ्ट साइड में मैम पेरिटोनियल के वो लिम्फ नोड में मैम 6 mm का वो सूजन गाया है मैम। क्या आया है गॉल और ब्लैडर में? मैम वो पेरिनो पेर वो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड आया है मैम। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड, ओके ओके। हाँ 6 ठीक है, mm। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड है तो आपका जो लिम्फ नोड है पेट का वो स्वेलअप हुआ है, दैट मीन्स कि आप अभी तक क्या क्या खा रहे थे, क्या कर रहे थे अपने शरीर के साथ? अभी आप मैम क्या खाते हैं? ये मैम रोटी सब्जी, और हम्म मैम जैसे वेट, और मैम मेरा वेट भी कम है मैम, 26 साल का हूँ, और हम्म 43 किलोग्राम वजन है हम्म तो रोटी सब्जी खा के मैम। वजन नहीं अंडर बढ़ रहा वेट। है ना? हाँ मैम। रोटी सब्जी खा के मेसेंट्रिक नोड्स भी बन रही है शरीर में, है ना? तो यस रोटी मैम। सब्जी छोड़ दीजिए और फ्रूट्स खाना शुरू कर दीजिए, 1 महीना खाइए और 1 महीने बाद चेक कराइएगा फिर से। जो भी टेस्ट आपने अभी कराया ना वो कंप्लीट 1 महीना सिर्फ और सिर्फ फल खा करके, एंड यू कैन स्टार्ट, है ना? आपकी रिपोर्ट्स आई थिंक उमंग ने मुझे भेजी है ना? यस मैम। हम्म। अब फ्रूट्स खाइए, मैम जैसे फ्रूट्स घर वाले, हाँ के और कुछ मैम खाना जैसे नहीं। घर वाले बोल रही। क्या बोल रहे हैं? अच्छा मैम, कि मैम जैसे वो वजन मतलब फिर और कमजोरी हो जाएगी अभी फल अभी खा के। क्या है, अभी तो वजन कमी है ना, कमजोरी नहीं होती है, फल हमें कमजोरी नहीं हाँ मैम। देते। फलों से ताकत मिलती है अच्छा मैम। हमें, और क्योंकि फल ही हमारे शरीर के लिए डिजाइन किए हैं नेचर ने। ठीक मैम है, जैसे कोई बोलते हैं कि वो रो रहते हैं, कच्चे रहते हैं, तो मैम उसमें वो कीड़े मकोड़े एंटी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप शुरू तो करिए, आप रोज आइए मीटिंग में, और आज से ही आप शुरू करिए, अभी से ही। अब आज आप और कोई खाना नहीं हाँ हाँ। खाइएगा, आज आप सिर्फ फ्रूट्स खाइएगा, ठीक है? तो जी आपको मैम। फिर पता चलेगा। एंड आते रहिए रोज रोज, जो भी आपको हाँ मैम। प्रॉब्लम आ रही है, जो सिम्टम आ रहा है वो बताते रहिए, ठीक है? उस हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे, और बिल्कुल आप 1 महीना दे के देखिए। अच्छा मैम। मैम एंटीबायोटिक तो मैम उसका ये क्या कारण है मैम, थोड़ा बताइए मैम रिपोर्ट में क्या क्या चीज? होती है मैम मेसेंट्रिक लिम्फ नोड मैम, लेफ्ट साइड दर्द करता है का मैम। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स क्या होती है ये आपको जानना है? अच्छा ठीक है, मैं आप हाँ थोड़ा सा मैम ये वेट, मतलब क्या। मैं ये वाला प्रेजेंटेशन पूरा कर लूं, फिर मैं आपको दूसरे प्रेजेंटेशन में दिखा दूंगी कि कैसी कहाँ होती है हमारी मेसेंट्रिक लिम्फ नोड। ठीक है? जी मैम। ठीक है, ठीक है, ओके। आयुषी जी,
Can I tell him something? Yes. The same जो इनको प्रॉब्लम है, I mean severe constipation नहीं है, mild constipation मेरा भी है, but जैसे फ्रूट्स और पानी पीती जा रही हूँ वो डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होते जा रहे हैं, तो आप उसी में हटे रहिए, ठीक हो जाएगा सब कुछ. मेरा बीपी थायराइड सब कुछ निकल गया एंड और स्लोली मोशन भी बेटर हो रहा है. सो आप ट्राई कीजिए. मैं भी लास्ट महीने से ही स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप फ्रूट्स में अटे रहिए और पेट भर के खाइए और पानी भी खूब सारा पीजिए, फिर वो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा. ओके आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको एग्जांपल भी मिल गया है ना जिनका. With your presentation, I had another doubt. So anabolic metabolism will build muscles, right? But the strength in the muscles comes only if you exercise, right? Yeah, that is true. That is true. But muscle building happens in the body. Yeah. Either ways. Happens in the body only. No, I mean, is it only at a young age or has at every stage in life it keeps building? No, at every stage. You know, if you are eating what is designed for you, then it's like an ongoing process. Okay. But the strength comes from the exercise, right? Yeah. So that we have to do, right? Okay. And that too a very natural exercise, not a kind of gym workout and all those things are a bit artificial. Yes. Right. Actually, self-body exercises are the best. Simply running can also help in building up the muscles. You need not to do anything. Running actually, I used to do that a lot, but that gave me knee problems. So if you do running, you need to do some weight, like body exercises, etc. Right? If you move your muscles. Yeah, so normal stretching is okay. Normal stretching is good that you can do. A little bit of some, using your own body weight, you need to do exercises to build the strength in the muscle. Otherwise, that leads to knee problems a lot. So walking is actually better. No, so you are overweight, right? That is the issue. No, but my knee problem started because I used to just run a lot before, not do anything at all, and that time I was not overweight. So then the service started. So then, but when I was much younger, I used to do this thing, running. But then you were not eating right food, no? That was also a problem for yes. your That knee. is there. Not running. Running was not the problem. The food was the problem. Okay. That is also true. Correct. That's probably true. Yeah. But I mean, generally when you run, you also need to do some strengthening exercises. Stretching is what I'm trying basically, to say. You know, when you see players also, they are going to play then stretching is the most important thing before doing important thing. Right, exactly. Right. Stretching can be done, that's it. Right. Okay, thank you. Okay, so now हम ये देखते हैं कि metabolic flexibility आखिर में है क्या. Now this is what we are talking at the very cellular level. हमारे cells के अंदर क्या होता है. Okay. The ability to respond or adapt to the conditional changes in metabolic demand. ठीक है. Metabolic flexibility जो है एक ऐसी flexibility है हमारे cells के अंदर कि हमारे cells के पास एक ability है कि वो किसी भी condition में खुद को adapt कर पाए और respond कर पाए. ठीक है. मान लो जैसे कि अभी ये आगे आ ही गया. It is the body's ability to switch between different fuel sources for sustained energy production. ठीक है. For the survival of a cell or of an organism या human being as a whole. ठीक है. Cell से organism से हम पूरे human being को अगर बोले generally, तो उसके लिए energy production का होते रहना important है. अगर हमारे ब्रेन के पास ग्लूकोज नहीं होगा और एनर्जी सप्लाई नहीं जा रही होगी या जो वाइटल ऑर्गन्स है हार्ट के पास, देन
it may result in the death of a person or a person can become unconscious. ठीक है, तो बॉडी को इसके लिए एक बॉडी के पास एबिलिटी होती है कि वो फ्यूल सोर्सेज के बीच में स्विच ओवर कर सकता है. हाउ दिस इज पॉसिबल? अगर ग्लूकोज एब्सेंट है, ठीक है, ग्लूकोज अगर नहीं मिल रहा है तो फैट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है. ठीक है, ग्लूकोज अगर है तब तो ठीक है, अदरवाइज जो हमारा स्टोर्ड ग्लूकोज है लिवर में वो यूज हो जाएगा. लेकिन अगर ग्लूकोज की एब्सेंस है, if glucose is not there, then what body starts doing is it starts converting fat into glucose that we called as जो कीटोसिस हम बोलते हैं. ये जो कीटोडाइट्स लोग नहीं देते हैं, but they are very dangerous. ठीक है, इसलिए ग्लूकोज ही हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है. बट अगर बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो होम्योस्टेटिस मेंटेन करने की हमेशा कोशिश करेगी. ये जितने भी आप जिस चीज को भी डिजीज मान के चल रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें बेसिकली है क्या, वो सिर्फ और सिर्फ होम्योस्टेटिस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है हमारी बॉडी. और जब होम्योस्टेटिस मेंटेन नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप बॉडी को इंटॉक्सिकेट कर रहे हो, करते जा रहे हो, तो उस कंडीशन में वो आपको कुछ ना कुछ परेशानी दे रही है जिसको कि हम बीमारी कह दे रहे हैं, या हम उसको आईबीएस कह दें, या हम उसको डायबिटीज कह दें. जिस पार्ट में हो रहा है ज्यादा इफेक्ट आपके, उस पार्ट में वो चीज निकल करके आ रही है, या हम उसको लिम्फ नोड्स का स्वेल अप करना बोलते हैं. ठीक है, सो ऑल द थिंग्स आर सेम ओनली. यस, अभी किसी का क्वेश्चन है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? मैम आपने जैसे कहा कि प्रोटीन हमारे बॉडी में अमीनो एसिड से तैयार होता है, तो अमीनो एसिड कैसे तैयार होता है आपकी बॉडी में? अमीनो एसिड्स तो आपके फ्रूट्स में है ना, आप डायरेक्टली दे रहे हो. आपके बॉडी को प्रोटीन को उतना तोड़ने वाला काम नहीं करना पड़ रहा है, आप डायरेक्ट दे रहे हो तो वो डायरेक्ट बना रहा है. फ्रूट्स में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है. और अगर कोई ऊपर से कंज्यूम नहीं मालूम और प्रोटीन आपकी पाउडर ले रहा आवाज है, क्लियर नहीं आ रही है, आप फिर से बोलिए थोड़ा पास से माइक के. अगर कोई प्रोटीन पाउडर ले रहा है, अगर को फूड खा रहा है समझो, उसको नहीं मालूम कि क्या करना है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा प्रोटीन पाउडर का बॉडी पे? प्रोटीन पाउडर एक आर्टिफिशियल और बहुत ही डेंजरस चीज है जो कि धीरे धीरे आपके लिवर को खराब कर देती है. ठीक है, और अच्छा, यही बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण है प्रोटीन पाउडर. तो जो नए बच्चे होते हैं ना 16-17 साल के, जो जिम विम करना स्टार्ट करते हैं, उस तरह के केसेस आते हैं मेरे पास. तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने जिम ज्वाइन की होती है और 4-5 प्रोटीन के डब्बे खा लिए होते हैं, और उसके बाद उनका क्या होता है कि साथ में हाई प्रोटीन डाइट भी ले रहे होते हैं, अंडा भी ले रहे होते हैं, जैसा कि लोग बोलते हैं कि भाई अंडा लो तो बढ़ेगा आपका, है ना. तो वो उनकी मसल्स तो बनती नहीं है, लेकिन उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, शुगर लेवल हाई चले जाता है. तो प्रोटीन पाउडर इज अ वेरी डेंजरस थिंग. इट इज अ टॉक्सिन ओनली फॉर द बॉडी. बॉडी के लिए वो टॉक्सिन है क्योंकि वो बॉडी के हिसाब से है ही नहीं. What is the definition of homeostasis? होम्योस्टैटिस की डेफिनेशन क्या, मतलब बॉडी का अगर ब्लड का पीएच है तो वो पीएच लेवल मेंटेन रहे. अगर उसमें 5 ग्राम ही शुगर रहनी है तो वो 5 ग्राम ही रहे, ज्यादा नहीं हो. ठीक है, ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल रहे. शुगर लेवल्स अगर फास्टिंग 100 के ऊपर नहीं होना चाहिए तो वो रहे. इसको हम होम्योस्टैटिस कहते हैं. सेल्स के अंदर जो विस्कोसिटी है सेल्स की, या जो सेल के अंदर इतना ग्लूकोज रहना है, बहुत सारी चीजें होती है ना, देयर आर टू मेनी थिंग्स, वो सब अपने उस स्टेट में ही रहे. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड होम्योस्टैटिस. जितने एंजाइम्स टीएसएच इतना रिलीज होना है तो वही रहे. दैट इज होम्योस्टैटिस इन ओवरऑल. Right, thank you.
and this is present in all the organisms, even in nature. If we'll say ना कि सब कुछ एक नेचर के हिसाब से पानी पृथ्वी पर इतना रहना चाहिए और जंगल इतने और ये इतने, ठीक है, तो वो भी एक होम्योस्टैटिस ही है. सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द नेचर एंड टू every organism present on the planet. And if we are interfering, then there is a problem which is created. Basically, it's a natural ecosystem. Yeah, it's a natural ecosystem. And one more thing I wanted to add is, like in fruits, we get the amino acids, which are simple amino acids, rather than from foods and protein powders and all that, you get complex amino acids, which are more difficult for our body to digest. Exactly. So anybody who's having any doubt, please stick to the fruit diet. So please start on it and please continue on it. And Satya ji, you are in which group? Mumbai. I just saw all of them walking past the poor. Okay. I'm So right here in Powai. how many days it has been for you on fruits? I started last month, Jan 7. But I mean, I can't say I've done a full week without staying without fruits, because initially I used to have a lot of dry fruits in between because I couldn't bear the hunger. But now it's more stable and it's much easy. But tea, coffee and all I've given up. But Okay. now And it's getting much better. what has been the results in 1 month? I've lost about 10 kilos. My BP is gone completely normal. Thyroid is gone. I mean, thyroid I haven't checked as such, only the BP I've checked. But you told me to stop both the medicines right at the beginning, so I've stopped everything. I'm feeling very light, very energetic. Walking in the morning, walking in the evening, playing badminton in the afternoon, very active, no problem at all. Feeling good, basically. And basically, stomach is so light, it's feeling good. My digestion has been the issue, so that is gradually improving. Basically, I noticed that I need to have more water, and if some days if I don't have enough sufficient number of fruits, then the motion doesn't happen. So I need to increase the quantity of fruits. Yeah, digestive issues take a little bit longer, but it will get healed slowly. And then this is good enough to share a story. So just share a story of yours in the group, okay? Hi, ma'am. My name is Meenu. Okay, Meenuji. Yes. My husband is highly diabetic. Okay. So, and can he start the fruit diet? Yeah. What is his age? He's 64. He is 64. Okay. And Yeah, his HbA1c is 11.5. okay. But he's taking a lot of medicines like for heart also, blood pressure, cholesterol. So if he starts the fruit diet, he has to stop the medicines or yeah, how he can start? Yeah, medicines, you need to get it tapered from the doctor once he's starting. Okay. You need to watch you need to monitor blood pressure, you need to monitor blood glucose levels. Okay. And then you need to start like with how much is his fasting sugar level with the medicines right now? Yesterday I checked, it was 167, but before, like last week, it was 300, something like that. Okay, so right now he is taking as in cooked food and everything, breakfast, lunch, dinner and all, right? Yes. So he need to stop everything, and then he can definitely he can start fruit diet. He will get very good results. And monitoring is important while doing the fruit diet. Monitoring of blood sugar is important, and the intake of fruit, or whether you have to go for water fasting, right? That is going to depend on the fasting sugar levels. So you can you need to like
check the sugar levels, join the meeting, or if you're checking it early, you can send me the message. Keep updating me what are the symptoms, how it is going. And blood pressure also, you need to monitor it. If it's higher, then SOS medicine might be required, right? That when it is needed, he might need to take the medicine. Okay. Yeah. So how to start? First, put him on water fasting. By stopping all the medications. If you are starting from water fast, then so you need to stop all the medicines. And if I start with fruit diet? Yeah. If you start with fruit diet, then medicines need to be tapered, and that I don't have the right to taper the medicines. Only the doctor can do that, right? Yeah, but doctor says don't eat fruit, so I don't know how he'll taper it. So, but they tell you, no, you can ask him that, say, if he wants to do fasting for the religious purpose, then what I can do. They will tell you. Doctor always tell you. Oh, okay. Because many ladies do fasting, they are managing their insulin doses and they are managing their diabetes medicine doses by themselves. Okay, so you can always ask the doctor to explain in detail what is the role of one particular medicine, and if I want to stop, if a person is not eating, आप बोल दो कि इनको खाने का मन ही नहीं हो रहा है, कुछ भी वो खा ही नहीं रहा है, ठीक है, तो अभी मैं क्या मेडिसिन दूं, कौन सी नहीं दूं, कौन सी मेडिसिन का क्या असर है, आप मुझे बताइए डिटेल में. Okay. This way you can ask him. Always we can get the answers. We need to ask the doctors carefully. Right? Okay. So he can eat all the fruits, right? See, in this case क्या होगा ना, हमें शुगर लेवल्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मेडिसिन खाने के बाद भी उनका जो फास्टिंग है वो ज्यादा ही है अभी. अगर ये 110 120 आप बोलते, तो मैं कह देती कि आप कोई भी फ्रूट खिला दो, क्योंकि शुगर तो फ्रूट में भी है, ग्लूकोज है ही, ग्लूकोज एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्रूट में शुगर नहीं, but it is something which has got lots of nutrients and fiber and which is designed for the body, तो फिर वो बॉडी के फेवर में ही काम करेगा. लेकिन हमें सेफ साइड ही चलना है ना. आप शुगर लेवल हाई होगा वो देख करके ही बहुत सारे लोग लाइक दे बिकम पैनिक, सोचते हैं कि अरे शुगर लेवल हाई हो गया, एंड दे स्टॉप फ्रॉम द नेक्स्ट डे. Okay. ठीक है, सो वी नीड टू स्टार्ट, एंड जब आप मेडिसिन नहीं दोगे तो शुगर लेवल अभी बढ़ेगा ही, क्योंकि ये तो मेडिसिन के थ्रू जो सप्रेशन हो रहा है उसकी वजह से चल रहा है ना. और जो हम एक्स्ट्रा खाना खा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है बॉडी का, तो अभी क्या है रिक्वायरमेंट, आप बॉडी कह रही है आप दवा मत खाओ, कुछ मत खाओ, और आप फूड भी मत लो जब तक मैं ये जो बची जो शुगर मेरे शरीर में है, इसको ब्लड स्ट्रीम में है, इसको मैं सेल्स में ना पहुंचा दूं, तब तक आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है. अगर हम नेचुरली समझे तो शरीर का सिर्फ यही सिग्नल है. डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, डायबिटीज इज अ सिम्टम ऑफ मेटाबॉलिक इम्बैलेंस. अभी जो हमने देखा, जितना भी मेटाबॉलिक इनफ्लेक्सिबिलिटी हुई या शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई जिसकी वजह से पैनक्रियाज इनफ इंसुलिन नहीं निकाल पा रहा है, तो ये उसका सिम्टम आ रहा है डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर लेवल. तो हाई ब्लड शुगर लेवल शरीर हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया क्या क्या खा लेते हो, इतना सारा नहीं खाना था, ये सब भी नहीं खाना था, अच्छा चलो अभी तक नहीं बंद किया है, अब तो बंद कर दो. लेकिन हम तब भी नहीं मानते हैं, तो खाना है, हम दवा लेते हैं उसके लिए, एक और टॉक्सिन लेते हैं. राइट. तो बस सीधे सी ये बात है, अगर वाटर फास्ट से ही कैन स्टार्ट एंड ही इज ओके विद दैट, एंड फर्स्ट थिंग इज कि ही मस्ट बिलीव इन द प्रोसेस. राइट. हाँ, आपके चाहने से मेरे चाहने से नहीं होगा. आई वॉज नॉट एबल टू कन्विंस माई हस्बैंड, तो हमारे चाहने से नहीं होता है जब तक वो अपने आप से इस प्रोसेस में बिलीव नहीं करेंगे. ही मस्ट ऑल्सो बी बिलीविंग इन द प्रोसेस कि हाँ ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूँ अपने आप को सही करने के लिए, मैं कर रहा हूँ, राइट, और मैं सही होऊंगा, ये होना चाहिए अंदर से. राइट. ओके, थैंक यू. ओके. अरुणा जी,
Do you have any question? रेनू जी, आपके कुछ questions हैं? I can see in the chat box. Yes, ma'am. Can we mix two fruits, fruit or smoothie? What is right? अभी if you are a beginner, okay, so then we must not mix fruits because हम क्या कर रहे हैं, हम अपने body को rest दे रहे हैं, ठीक है? और अगर जब हम फ्रूट्स को मिक्स करके खाते हैं तो हमारे बॉडी का जो डाइजेशन टाइम है, जो स्टमक में वो डाइजेस्ट होगा, उसका टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा तरह के एंजाइम्स का सिक्रीशन करना पड़ता है बॉडी, ठीक है? स्मूदी अगर आप बना रहे हो तो आप बना सकते हो बिल्कुल, ओके। कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं चल रही है आपकी? नहीं। ठीक है, तो स्मूदी आप बना सकती हैं, बट स्मूदी का जो कंटेंट होगा वो वाटर ही होगा साथ में। अगर बनाना स्मूदी बनानी है तो बनाना एंड वाटर, राइट, ठीक है? दैट वे यू कैन डू। मस्क मेलन बनाना है तो मस्क मेलन को ही आप सिर्फ ग्राइंड कर दोगे, उसमें आपको पानी भी नहीं ऐड करना पड़ेगा। एंड बनाना, इफ यू आर नॉट एडिंग वाटर इन बनाना और उसको आप ग्राइंड करोगे ना, तो इट वुड बी अ वेरी थिक आइसक्रीम काइंड ऑफ थिंग आपको मिलेगा। दैट इज ऑल्सो वेरी टेस्टी, आई हैव ट्राइड इट। Okay, what is ma'am, water लेकिन you fast? should start with fruit or smoothie. Start with fruits. Eat as much as fruits you want. See, ideally, if we see, तो fruits natural है ना? मिक्सर, ग्राइंडर या स्मूदी बनाना, ये सब तो हम कुछ अननेचुरल चीज यूज करके कर रहे हैं ना। तो you must start with fruits, and your digestive system is the best mixer, जो कि माउथ से शुरू होता है, टीथ से शुरू होता है। हम टीथ से पहले उसको फूड को च्यू करते हैं, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू चाइम, एंड देन वो अंदर जाता है, वहां पर उसको हम चाइल बोलते हैं। तो वो सारी चीजें बॉडी आपकी, मतलब डाइजेशन जो है ना, वो एक केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। सो वी मस्ट लेट इट हैपन नेचुरली। तो इफ यू आर हैप्पी विद ओनली ईटिंग फ्रूट्स, दैट इज द बेस्ट। ओके, ओके, लेकिन अभी जैसे प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, बोलते हैं आयरन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, व्हाट अबाउट देम देन इफ यू आर जस्ट ऑन फूड? So as if you have seen the presentation, कि प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बनता है वो अमाइनो एसिड से बनता है, ठीक है? एंड फ्रूट्स हैव गॉट ऑल द अमाइनो एसिड्स। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन क्या है? कभी ये किसी ने जानने की कोशिश की है? बस एक प्रोटीन शब्द सब लोग बोलने लगते हैं, तो हम सोचते हैं कि प्रोटीन पूरा, मतलब उसके लिए ऐसी चीजें खानी पड़ेंगी ना कि जिसमें प्रोटीन जैसे हो। वर्कआउट में स्पेशली बोलते हैं ना, वर्कआउट में यू हैव टू हैव प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन इज व्हाट अमाइनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन। प्रोटीन इज ओनली अमाइनो एसिड, यू नो। अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिल करके प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है? छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो जब मिलते हैं तो वो उनसे बनता है प्रोटीन। जैसे कि मान लो एक आप दीवार या घर बना रहे हो, तो वो उसकी जो एक ईंट हो गई, दैट इज अमाइनो एसिड, एंड उससे जो दीवार खड़ी हुई, दैट इज प्रोटीन। और फ्रूट्स में यू आर गेटिंग sufficient amount of amino acids which are like sufficient to make your proteins, and there are some essential and some non-essential amino acids, you know that, ठीक है? जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, उसके लिए हमें बाहर से कुछ खाने की भी जरूरत नहीं है। शरीर इतना केपेबल है कि वो खुद से ही बना सकता है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है, वो उसके लिए हम फ्रूट खा सकते हैं। We have got Mr. आयरन आल्सो। हाँ, सतीश गोगी जी हैं एक आयरन भी मिलेगा? हाँ, आयरन तो मिलेगा ही। आयरन और कहाँ से मिलता है? आपको क्या लगता है कि आयरन के लिए क्या खाना पड़ेगा? वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल। नहीं, आयरन भी आपको फ्रूट में मिलेगा। मेरा जो आयरन लेवल था या हीमोग्लोबिन था, जब मैं माइक्रो ग्रीन, स्प्राउट्स, वेजिटेबल, सैलेड ये सब खा रही थी, तब कभी भी नहीं बढ़ा। 11 ऐसे रहता था। और अभी मैंने फ्रूट 7 महीने से मैं फल खा रही हूँ, 7 मंथ से पिछले। तो मैंने 1-2 महीने बाद ही चेक किया था, तो वो 13 था, और अभी भी 13 पॉइंट समथिंग हो गया है, तो बढ़ रहा है। गूसबेरी
जो आंवला होता है उसको भी हाँ, recommend that you करते हैं can पर have. That you can have. क्योंकि बेसिकली अगर इनकी कमी होती, you feel very weak. Like I did a juice fast for 3 days, and after 3 days my symptoms was very very bad. Like 3 days I was on bed, I was not able to do anything. I No, so felt see, very that weakness is something which is again, we are misunderstanding it as weak. That is the body's sign to have rest because the body has started some healing process inside. And juicing is not a very good thing, you know. आप अगर फ्रूट्स खा रहे हो तो आपको वो सफिशियंसी रहेगी और नेचुरली बॉडी को जब जो करना है वो करेगा. अगर आप जूसिंग कर रहे हो तो वो थोड़ा सा अलग प्रोसेस हो जाता है. ठीक है, तो अगर आपको कमजोरी लग रही है और आपको रेस्ट करना पड़ रहा है तो वो अच्छा है ना शरीर के लिए. शरीर कुछ सही कर रहा है, वो खराब थोड़ी है. but I literally felt sick. Like I was not able to do anything. हाँ, तो 3 यहाँ days. It पे was a तो long यहाँ पे तो ये time. लोग वेट करते हैं. अनंत जी हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि मैं बीमार कब पड़ूं. मैं पहले इंतजार करती थी कि मुझे बुखार कब आएगा. सर बुखार नहीं आ रहा है और मुझे लेटने का मन है, बट हो ही नहीं रहा है, फीवर ही नहीं आ रहा है. तो इट्स लाइक कि दैट इज समथिंग. अगर आप मीटिंग्स अटेंड करते रहोगे और इफ यू कैन ऑल्सो वॉच द प्रीवियस वीडियोस जो कि यूट्यूब पर हैं, देन यू विल गेट टू नो दैट ऑल दीज थिंग्स आर द डिटॉक्स सिम्टम ऑफ द बॉडी. जो भी आप जी, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, क्वेश्चन पूछना है मैम. एक सेकंड रुक जाइए, इनका क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिए. रेनू जी का वाटर फास्ट और पूछा था मैम. वाटर फास्ट क्या है? पहले मैं आपको बता रही थी कि जो ये सिम्टम्स होते हैं, कफ, कोल्ड, फीवर, पेन या थोड़ा सा वीकनेस फील होना, ये सब शरीर के हीलिंग सिम्टम्स है. द बॉडी इज ट्राइंग टू टेल अस कि वो कुछ हील करना चाहती है. अभी अगर बुखार आ रहा है तो बुखार का कारण क्या है? बॉडी लेके आ रही है ना. दैट इज इनबिल्ट इन योर सिस्टम. यू आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग फीवर फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से बुखार नहीं होता है, वो अंदर से इनबिल्ट है. जैसे ही टॉक्सिन्स इतने ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे शरीर में कि शरीर को लगेगा नहीं अब तो इसको निकालने की जरूरत है, अगर नहीं निकाला तो ये कुछ डैमेज कर देगा, तो वो फीवर रेज करता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर रेज करता है और उसके बाद वो उसको किल करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, लिम्फेटिक सिस्टम में भेजता है. उसके थ्रू फिर कफिंग, खांसी, जनरली क्या देखते हैं, बुखार होता है उसके बाद थोड़े दिन तक कफ कोल्ड रहता है, तो वो बाहर निकलने का सिस्टम है. हम उसको भी सप्रेस कर देते हैं दवाई खा. तो हम सब कुछ बॉडी के अगेंस्ट करते जाते हैं. वाटर फास्ट जो है वो ये है कि इट इज समथिंग व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द बॉडी टू डू वाटर फास्ट. जैसे कि डायबिटीज हमने कहा या क्रोनिक इलनेस है किसी को, ठीक है, तो उस केस में अ पर्सन इज डूइंग वाटर फास्ट. या फीवर आ रहा है हम तो वाटर फास्ट कर रहे हैं, वोमिटिंग हो रही है या लूज मोशंस हो रहे हैं, दैट मीन्स बॉडी डजंट वांट टू टेक एनीथिंग इनसाइड. या मुंह में छाला ही निकला है तो क्या इंडिकेशन है? आप कुछ खा नहीं पाते हो, छाला निकला, लेकिन जबरदस्ती हम खाते हैं कि नहीं इधर निकला है तो इधर से खा लेंगे, राइट? तो दैट इज रॉन्ग. बॉडी तो चाह रही है कि भाई अभी नहीं खाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे करेक्ट करने दो. आपने एक्स्ट्रा चीजें खा ली हैं, आप वो खाते आ रहे हो जो आपके लिए नई डिजाइन था, सो यू मस्ट स्टॉप इट. बट वी डोंट लिसन टू इट बिकॉज इट्स देयर. हमारे मम्मी खाते थे, पापा खाते थे, उनके भी वो खाते थे, वो तो बड़े हेल्दी रहते थे, तो हम कैसे छोड़ दें? रोटी दाल सब्जी, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें फैट होता है, उसमें ये होता है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. वी नीड टू अनलर्न ऑल दीज थिंग्स, देन यू विल फील लाइक अभी जो आप बोल रहे हो ना, थकान हुआ या वीकनेस हुआ, आपको कभी थकान वीकनेस होगा ही नहीं. आप बारिश में भीग जाओगे, आपको जुकाम होगा ही नहीं. आपको मतलब हीलिंग फेज में ये सब कुछ होगा, लेकिन जब आपका बॉडी क्लीन हो जाएगा, सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, तो आप अगर अभी सिर्फ वॉकिंग कर पाते हो तो आप रनिंग करोगे, आपका स्ट्रेंथ, स्टैमिना सब कुछ इम्प्रूव होगा. Okay, ma'am. Thank you. And please share the videos you are talking about on the group. Okay, you are in which group? Falahar group.
Yeah. Okay, I will share it. No problem, right? Okay, yes, अनंत जी पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे सेल्स मैम इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो जाता है? हैं? क्योंकि हम गलत खा रहे हैं, फल नहीं खा रहे हैं। अच्छा। देखो, एक एक सेल का स्ट्रक्चर आप देखो, ठीक है, सेल वॉल होती है पूरी, ठीक है, फिर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या क्या होता है, ठीक है, बायोलॉजी में सबने पढ़ा है। तो अब उस वॉल पर छोटे छोटे से रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए, हर एक चीज के लिए, ग्लूकोज के लिए। अब वो रिसेप्टर्स, जैसा कि उसमें दिखाया था ना, सेल वॉल पूरी दिखाई थी वीडियो में, तो उस रिसेप्टर के ऊपर मान लो कि फैट लेयर जमा हो गई, मान लो कि ताला है, ठीक है, अब ताले में चाबी लगनी है, लेकिन ताले का जो वो होल है उसमें सैंड भर गई, फैट भर गया, तो खुलेगा है नहीं ना, चाबी से कैसे, घर के अंदर कैसे ग्लूकोज जाएगा? आप जा ही नहीं पाओगे घर के अंदर, बाहर ही खड़े रहोगे, फिर क्या करोगे, वापस ब्लड में जाएगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ये होता है, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम सिंगल, एक सेल पे कहीं कहीं हुआ, मतलब जब बहुत ज्यादा लिमिट हो जाती है, तो आप सोचो कि आप अपनी बॉडी को कितना पॉइजन कर रहे हो कि आपको डायबिटीज हो जा रहा है। कितना आपने सोचा कि नहीं, प्रोटीन के लिए मैं ये खा लूं, कार्बोहाइड्रेट के लिए ये खा लूं, फैट के लिए ये खा लूं। और जितना ज्यादा मैंने ये नोटिस किया है मेरे पेशेंट्स में, लाइक मोर देन 3000 पेशेंट्स को ट्रीट किया है, तो जिसका नॉनवेज का इंटेक बहुत ज्यादा था, उनको बहुत अर्ली डायबिटीज आया, और उनका डायबिटीज बहुत अनकंट्रोल्ड भी रहा, और सही भी बहुत देर में हुआ, क्योंकि वो ये तो दवाइयाँ, ये प्रवृत्ति चालू कहाँ से हुई मैडम? ये दवाइयाँ आई इसलिए लोगों ने मतलब इस तरीके से बीमार होते गए मेरे ख्याल से। ये प्रवृत्ति, ये आदत, ये हैबिट कहाँ से चालू हुई? दवाइयाँ ही सारे रोगों का कारण है इसका मतलब तो। दवाइयाँ क्यों है, हम खुद है ना, हम खुद सच नहीं जानना चाहते, हम झूठ में जीना चाहते। नहीं, दवाई रहती ही नहीं तो इंसान गलत सलत खाता ही नहीं उसको, बिना दवाई के फिर वो बॉडी की सिम्टम को ध्यान देता फिर वो। नहीं तो देखिए, एक जो हमारा ये सोचे ना, नहीं कि ये ऐसा करते हैं या ये एड में आ रहा है तो वो सही है, एडवर्टाइजमेंट में अगर आ रहा है कि नहीं आप रिवाइटल लीजिए तो अच्छे होंगे, या एम्वे का नहीं आता है, आयुष्मान भव, तो अगर आप वो ले रहे हैं तो नहीं, आप कुछ भी खाइए, कुछ भी करिए, कैसी भी लाइफस्टाइल हो वो खाइए तो सही। तो हम इस तरह की चीजों के पीछे भागना चाहते हैं, हम खुद कारण है, हमें ही बहुत आराम चाहिए और ऐसी चीजें चाहिए, नहीं कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ये भी तो वही बिल्कुल आराम तो इसी में है ना, फल खाने में कितना आराम है, ना कुछ बनाना है, ना कुछ करना है, एंड एनर्जी डबल है पहले से। लाइक मैंने तो जो इन 7 मंथ्स में एक्सपीरियंस किया, बहुत अमेजिंग था। और हाँ, बहुत वो तो सारी मैं भी गलतियां भी करते थे, मतलब पहले क्या था ना, मेरी आदत थी कि ऐसा ना हो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाए, क्योंकि जो मैंने न्यूट्रिशन में पढ़ा 5 साल, उसके बाद जो देखा हॉस्पिटल्स में जब काम किया, तो कि नहीं इतना कार्बोहाइड्रेट देते हैं, इतना प्रोटीन देते हैं, इतना फैट देते हैं, फिर उसके बाद जो और लोगों को भी देखा कि हाँ ठीक है, ये हेल्थी है, सही है, ऐसे खा रहे हैं। इवन आई वर्क विद अ जिम ऑल्सो, तो वहां पे भी मैं देखती थी। तो बट होता क्या है ना, फिर जब घूम फिर के आता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम पूरी तरह तो जा ही नहीं रही है, रूट कॉज तो किसी का भी नहीं जा रहा है, और उसको आप कैसे बताओगे? जैसे कि मान लो कि किसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने करके रखा है कि 1875 किलो कैलोरीज पर डे एक वुमेन की रिक्वायरमेंट है, तो अब वो किलो कैलोरीज तुम कैसे नापोगे, या जो नापा हुआ है, जो आप उसमें विश्वास कैसे कर रहे हो? मुझे तो आज तक विश्वास नहीं होता, हालांकि मैं डाइट प्लान्स बनाती हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि ये कैसे कर रहा है, तो अभी तो मैं फ्रूट से इंक्लूड करती हूँ ज्यादातर, है ना। और फिर आप कंपेयर करो वहीं पे उन लोगों को जो 10 साल से केवल फल खा रहे हैं, तो जब ये कंपैरिजंस आए ना, तो मुझे लगा कि नहीं भैया, यही सही चीज है। और फिर अपने बॉडी में जब हम फील करते हैं कि मुझे पहले लेजीनेस थी, या मुझे दर्द होता रहता था,
या मुझे ये कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, या हेडेक हो रहा है, ऑफन हेडेक हो जा रहा है, जरा सा कुछ हो गया, सर दर्द हो गया, तो वो सारी चीजें सिर्फ हमारे गलत खाने, सॉल्ट के इंटेक की वजह से है, कुक्ड फूड की वजह से है। जैसे ही हम कुक्ड फूड और सॉल्ट हटा रहे हैं ना, अच्छा हो रहा है। सही तो बात ये मैम। सारी ये चीजें टंग जो आई है, आदमी खुद में सही नहीं होना चाहता है। मतलब अगर अभी हम बोले कि नहीं, कोई नया आया जैसे यहाँ पर, और उसको बोले नहीं आपको जिंदगी भर फल खाना है, उसको तो सारे समोसे कचौड़ी याद आने लगेंगे, अरे मैं ये नहीं खा पाऊंगा, ये नहीं खा पाऊंगा। तो वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं चीज है ना, कि हम हर एक चीज का तुरंत क्विक सोल्यूशन चाहते हैं, कि ये बस किसी तरह से ये सॉल्व हो, हाँ एक्चुअली। है ना। कि जैसे पेन हो रहा है, तो अब पेन मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो लो भाई पेन किलर ले लो। आप जिससे पेन फोन किलर ले पे लो। बात भी कर रहे होगे ना, तो मतलब कोई आपको अपना वो बता रहा होगा, आप अगर सुनो, मतलब हम लोग तो अभी नहीं बोलते हैं, पर पहले भी, अगर मैं 7 महीने पहले बोलूं, अगर जैसे ही को बोलता था बुखार है, तो बुखार के लिए क्या, हाँ भाई दवाई ले लो, है ना, पैरासीटामोल ले लो। तो वो हाँ ये तो चलता ऐसा ही। आ गया ना, वो थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा भी बच्चा ज्यादा रो रहा है तो लोग डॉक्टर के पास लेके पहुंच जा रहे, डॉक्टर साहब ये बहुत रो रहा है, इसको कुछ दवाई दे दीजिए। और फिर हम ब्लेम कर रहे हैं डॉक्टर को। हमें भी तो उस समय अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से सोचना चाहिए ना, कि एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर। तो वही है, बस अनलर्न करना है चीजों को, और समझना है, शरीर से अपना कनेक्शन बनाना है। जैसे ही आप बना लोगे, आप समझ जाओगे, आपको फल में ही सब कुछ दिखने लगेगा। Actually, Ayushi ji, what he's saying is correct. My husband also says the same thing. I don't want to eat fruits. I'll have whatever I want, and I'll have my medicines. तो दवाई के हिसाब से वो लोग दे रहे हैं. I mean, तो like on the आप basis. दोनों लोग मिलके दवाइयों की कंपनी के अगेंस्ट मोर्चा मोर्चा निकालना शुरू करो, कि भाई आप लोग दवाई बंद करो, तो फिर हमारे घर के लोग सुधरे, नहीं तो सुधर ही नहीं रहे, वो दवाई ले रहे हैं। महात्मा गांधी की बुक में लिखा है ना, फास्टिंग के ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें लिखा है कि ये डॉक्टर ही सारी बीमारियों के कारण है, क्योंकि हाँ ये बिल्कुल डॉक्टर नहीं है। होते तो दवाइयां नहीं होती। तो ये तो वही दवाई है खा ना, खा के लोग खाना खा रहे हैं। ये तो वही वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से जो ये बायर कंपनी स्टार्ट हुई, और फिर इन लोगों ने ये सब किया है, हाँ हाँ। कि सोप, साबुन का इस्तेमाल करो, मतलब सारी टॉक्सिक चीजें बना दी हैं, है ना, दवाई का अब एक इस्तेमाल। चीज बताइए, अगर इंसुलिन बना ही नहीं होगा, इंसुलिन अगर आर्टिफिशियल इंसुलिन बना ही नहीं होता, हम्म तो कम से कम टाइप 2 डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ ही नहीं रहे होते। हम्म हाँ नहीं, मतलब कि अगर हम जो खा रहे हैं, मेन तो डायबिटीज का मेन कारण इंसुलिन इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन तो हम बाद में यूज कर रहे हैं ना, जब हमको डायबिटीज नहीं हो जा वही रहा है। बता रहा हूँ, नहीं नहीं मैं ये बोल रहा हूँ मैडम, इंसुलिन अगर होता ही नहीं दवाइयाँ, मार्केट में अगर, हाँ दवाइयाँ और इंसुलिन नहीं होता, तो फिर हम दूसरा उपचार तो लोग ढूंढते। इंसुलिन लेते ही नहीं, तो फिर वो अपना डाइट को सुधारते ना। उनको बिल्कुल समझ बिल्कुल। में आ जाता कि है ना, मेरा डाइट सुधारना मेरे को ज्यादा जरूरी है जिंदा रहना है तो। हाँ बिल्कुल No, but बिल्कुल सही। earlier अल्टरनेट everybody used to have Ayurvedic ना. वो तो बहुत साल से है हमारे देश में. I mean, so that आयुर्वेद तो है, लेकिन आयुर्वेद की स्थिति एलोपैथ से ज्यादा खराब है, सही बताऊं। आयुर्वेद से कुछ कंट्रोल होता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा टॉक्सिक टॉक्सिक है। दोनों ही चीजें, चाहे आप आयुर्वेद की मेडिसिन लो वो भी टॉक्सिक है, और आप ये सॉरी एलोपैथ की मेडिसिन लो वो भी टॉक्सिक है आपके शरीर के लिए। जो एलोपैथिक मेडिसिन की टॉक्सिसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, वो एकदम अचानक से जाके इतनी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देती है कि शरीर वो सब छोड़ के, शुगर लेवल छोड़ के दूसरा काम करने लगे, इसकी टॉक्सिसिटी को रिमूव करने की कोशिश करने लगता है। तो सही है आपका एकदम, आप इस चीज को आगे लेके जाइए किसी तरह। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पॉम्पलेट्स बंटवाऊंगा न्यूज़पेपर में, ईट फ्रूट एंड हील। हाँ हाँ बिल्कुल, डिजाइन वीडियो डिजाइन वगैरह डिजाइन बनाइए करने आप। की जरूरत आप अपनी हील, थोड़ा सा हीलिंग का भी वीडियो बनाइए, जो भी अभी तक आपको हुआ है।
ठीक है, एक वीडियो हाँ बनाएंगे। बनाता हूँ मैडम, 1-2 कुछ दिन से अभी कुछ थोड़ा फ्री फोटोज हुआ हूँ। दीजिए वर्कआउट करते हुए, तो उनको फिर हम एक स्टोरी जैसा बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, करता हूँ मैं अब थोड़ा फ्री हुआ हूँ, अभी बाहर से आया, उसके बाद बहुत सारे काम पेंडिंग थे। अच्छा मैडम, ये पूछ रहा था मैं, ये टंग क्लीन करते हैं कि नहीं? नहीं मतलब नहीं, टंग अपने टंग आप क्लीनर यूज नहीं अपने करते? आप क्लीन हो जाएगी। अच्छा अच्छा। अपने आप एकदम पिंक ओके। पिंक जब टंग हो जाएगी ना, तो उससे ये भी पता अच्छा चलेगा ना कि हम कुक फूड तो नहीं खा रहे थे। ठीक है, अच्छा अच्छा। क्लीन हो जानी चाहिए ना आपकी। 6-7 महीने में एकदम टंग क्लीन हो जाती है। और ये दांतों में कुछ जमता है, ऐसा कुछ लगता है कि उसको साफ हाँ, करना चाहिए तो? नहीं नहीं, वो एक मतलब कुक प्रोटेक्टिव फूड खा रहे? लेयर है। वो प्रोटेक्टिव लेयर है। अच्छा तो अच्छा। हाँ, वो प्रोटेक्ट करती है आपके दांतों को, उसको भी आप जमने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो हम कुल्ला करते हैं ना, उतना ही करिए, और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। ब्रश तो ब्रश नहीं। मैम ये केला खाने के मेरा बाद तो ज्यादा जमता है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पानी से वो कर लो, खुला अच्छा। कर दो, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। और वो जम रहा है तो जमने दो। मैंने तो नोटिस किया कि बीच में क्या हुआ था, मेरे दांत के पीछे के साइड में जो स्किन होती है ना, जहाँ से नीचे से अटैच होता है स्किन से, वो हल्का हम्म। सा निकला सा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि दांत का जो रूट है वो एक्सपोज हो गया है, क्योंकि टंग उसमें लग रही थी। हम्म। तो मैंने फिर सोचा कि क्या करे, फिर मुझे तो पता ही था कि कुछ ना कुछ हीलिंग ही चल रही है। तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, फिर मैंने बिल्कुल बहुत ज्यादा कुल्ला उल्ला भी नहीं किया। और वो 3 से 4 दिन लगे थे, वो अपने आप 4 दिन बाद फिर नॉर्मल हो गया। हम्म। बस पानी पी रहे थे, अच्छा। फल खा रहे थे, कुछ नहीं करना है उसको, आपके टीथ वाइट हो जाएंगे अपने आप से। थोड़े से हुए हैं मेरे भी। मेरे भी हुए हैं, मेरे तो काफी नीचे के साइड के थोड़े से आगे के 4 जो है वो येलो येलो थे, और वो नहीं सही होते थे। और मैं और कुछ अच्छा। कुछ ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी, पर अभी मैं देख रही हूँ कि उसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो मैंने फोटो खींची हुई है पहले की भी बात, कि अभी हो जाएंगे सही तो फिर फोटो खींच के डालूंगी फेसबुक पे। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, थोड़ा टाइम टाइम लगता लगेगा है इसमें दांतों में। आपका। क्या होता है ना, 9 महीने साल भर भी लग सकता है। इट डिपेंड्स, क्या है कि हम्म बॉडी अभी किस चीज पर काम करेगी। बॉडी जो है ना, हम्म। प्रायोरिटी के हिसाब से ही काम करेगी। आपका अंदर वाइटल ऑर्गन में हो सकता है कुछ, उसको एलिमिनेट करना हो तो वो उस पे लग जाएगी पहले। पैर बॉडी। के नाखून सड़े हुए थे, वो ठीक हो रहे हैं? हाँ, तो आप वो ये सब ठीक ही नहीं अच्छी होते थे चीजें पहले? डालिए ना। वो पहले की पैर के नाखून की फोटो अभी की खींच के डालिए, क्या कर रहे हैं आप? इतने सारे आपको फायदे हो रहे हैं, दुनिया को बताइए तो। हाँ, बताने हैं, बनाना है वीडियो। और आईबीएस में क्या हुआ है आपका? आईबीएस तो ऐसा है मैडम कि वो तो पहले दिन से ही ठीक हो जाता है। आप जब फ्रूट्स खा रहे हैं तो आप एक्चुअली पेट में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, हम जो हम्म। खा रहे हैं वही परेशान कर रहा है। हम्म। जहां उसको छोड़ा, फ्रूट्स चालू किया, आईबीएस आईबीएस अपने आप गायब हो जाता है। हम्म। कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, इंडाइजेशन, गैस, ये सब सब अपने आप गायब हो जाता आपको कितना महीना हो गया? है। मुझे 3.5 महीने हो रहे हैं। 3.5 महीना हो गया। सही। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नहीं सॉरी, 21 सितंबर को चालू किया था, नहीं अक्टूबर को चालू किया था। हम्म। हाँ, 3.5 महीने ही हुआ है, 3.5 महीने हुए। तो आपने सिर्फ फ्रूट्स ही खाए या बीच में कुछ थोड़ा बहुत कभी खाया है? मैं खाया हूँ कभी मैडम, कभी। ऐसा नहीं है। मैं मतलब 80% 90% तक फ्रूट्स में हूँ। हम्म। ठीक है। हाँ, जैसे खजूर भी खा लेता हूँ कभी, कुछ नहीं है तो। हम्म। और कुक फूड भी खाया हूँ। हम्म। दिमाग कई बार भटका है, लेकिन हम्म। वो अच्छा था, भटका है तो समझ में आया है कि ये फूड मेरे लिए नहीं है। नहीं है। और और मजे की बात यह है कि वो खाया हूँ तो मेरी बॉडी अलग से आइडेंटिफाई करती है कि हाँ, ये हम्म। तुमने फ्रूट्स नहीं खाए हैं। कुछ तो भी हम्म। अलग चालू हो जाता है, सिम्टम या कुछ साइड इफेक्ट या कुछ ऐसा बताता है वो, कि हम्म। यस ये तुम्हारे लिए नहीं था जो तुमने खाया है। तो वो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है फिर फ्रूट्स पे। तो हम्म। कुक फूड खाना अच्छा है, एकदम एक ही दिन में ईमानदारी से कन्वर्ट हो जाना भी बुरा, मतलब अच्छा नहीं है। हम्म। कुक फूड खा लेते हैं तो ये पता चलता रहता है कि हाँ भैया,
या कुछ भी दूसरी चीजें भी खाते हैं सपोज, तो पता चलता है कि ये नहीं था आपके लिए। मतलब आपकी बॉडी इंटेलिजेंट हो गई है पहले से। इंटेलिजेंट हो रही है, इनोसेंट हो रही है, इनोसेंट तो एकदम आप पहले इनोसेंट से हो ही जा है। रही है धीरे धीरे। वो तो अब क्या पता, बट इंटेलिजेंट और इनोसेंट दोनों हो रही है। हाँ सही। हाँ बस खाते रहिए, दूसरे लोगों को भी खिलाते रहिए और अच्छा सा वीडियो बना के दीजिए, एक स्टोरी जैसा, पहले का कोशिश तो है। और अभी का, बिल्कुल बिफोर कुक फूड और बिल्कुल आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स। ठीक है, बिल्कुल 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 चलिए। मैम। ओके, आज संडे है, आज ही बनाइए, फिर उसको आज भेजिए। हाँ जब आज बनाता हूँ। Ma'am, I ठीक। have asked 2 questions. हाउ मेनी टाइम्स यू कैन ईट फ्रूट? कुछ टाइम नहीं है, टाइम तो इंसान ने बनाया है ना। ब्रेकफास्ट कर लो, लंच कर लो, डिनर कर लो, आप अपने भूख के हिसाब से खाइए, जब भूख लग रही है तब खाइए, जितनी बार मन हो उतनी बार खाइए, 10 बार खाइए, 15 बार खाइए, कोई टेंशन नहीं है, बस पूरा रात दिन को मजे भी, करिए। हाँ नाइट में, हाँ हाँ, लाइक लेट, भूख लगे तो नाइट में भी खाइए। लेट में, लेट लाइक व्हाट टाइम, टिल 11 10 ऐसा कुछ नहीं है? कि- आपको वैसे तो आइडियली अगर हम बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, रात को सो जाना चाहिए जैसे ही अंधेरा हो रहा है ना। हम्म। लेकिन हम सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं, तो हमारा दिमाग इधर उधर चलेगा कि कुछ खा लो, कुछ खा लो। तो अगर आपको रात में भूख है तो आप खा लीजिए। इनिशियली थोड़ा होता है, क्योंकि मैंने भी रात को 10 11 12 बजे भी खाया है, नींद नहीं आती है थोड़ा सा स्टार्टिंग में, और फिर क्योंकि बॉडी एडजस्ट कर रही होती है ना, और फिर क्या होता है कि भूख लगता है कि नहीं कुछ खा लो, क्योंकि वो दिमाग में हमारे रहता है ना, हमने तो अनाज ही नहीं खाया है ना, तो उसलिए आपको रात में भूख स्टार्टिंग की फेज में लग सकती है, बट धीरे धीरे आप भी बोलोगे आगे कि आज तो मुझे भूख ही नहीं लग रही है, मेरा मन हो रहा है आज मैं केवल पानी ही पीती हूँ। ठीक है। मीनाक्षी जी बोलिए। गुड मॉर्निंग आयुषी जी। गुड मॉर्निंग। आज मुझे ना बहुत मतलब लाइट सी लग रही है बॉडी, इन द सेंस के सिर भी बिल्कुल लाइट हो रहा है। वेरी तो गुड। क्या करना चाहिए मुझे? आप वीडियो ऑन कर सकते हो अगर कंफर्टेबल हो तो। हाँ जी। हाँ ठीक है। हाँ, क्या बोला आपने? आज ना बॉडी बहुत लाइट सी फील हो रही है, सिर भी बिल्कुल सेंटर ऑफ द हेड जो है ना यहाँ पे एकदम लाइट हो रहा है। तो लाइट हो रहा मतलब है तो अच्छा है, या मैं समझ। अलग सा सॉर्ट ऑफ चक्कर आना जिसको आप कह सकते हो, कि उस टाइप से बॉडी हो रही है, ओके ओके, वीकनेस। तो आप, हाँ, आप रेस्ट करिए और फ्रूट का इंटेक थोड़ा बढ़ाइए। कितने फ्रूट्स खा रहे हो अभी? ओके। सुबह क्या कल का बताओ पूरा, आप कल सुबह क्या खाया था? कल मैंने जैसे मॉर्निंग में मैं ना सारी बारी पहले तो पानी पी लेती हूँ। उसके बाद मैंने 7 1 बजे बनाना खाए, और 9 बजे के राउंड मैंने पपाया खाया, और एक बाउल छोटा, और उसके बाद मैंने कोकोनट वाटर लिया अराउंड 11 o'clock, बीच बीच में पानी चलता रहा। और उसके बाद मैंने फिर क्या खाया, वाटरमेलन लिया कितना? 1 o'clock। वो भी मैंने हाफ वाटरमेलन ले लिया था, छोटे वाला जो होता है। ठीक है। इस बारी में इतना खाया गया। उसके बाद फिर मैंने ग्रेप्स खा लिए थे, और फिर शाम से फिर बनाना चलते रहे। कितने बनाना और खाए एक बारी होंगे? रात में, एक बारी में 3 बनाना मतलब ले लेती हूँ। ठीक है। 3। ठीक है तो कल फिर रात को तो मैंने एक तो, 4 भी ले लिए थे। हाँ ठीक है, 4 लो, 5 लो, 1 दर्जन लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका लाइक इंटेक तो आपका ठीक है, ज्यादा कम तो नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा के भी देख सकते हो, अदरवाइज अगर ये वीकनेस आ रही है तो इट मे बी अ काइंड ऑफ अ डिटॉक्स सिम्टम। ठीक है, सो आपको रेस्ट करना होगा, राइट। थोड़ा सा रेस्ट आपको करना होगा। ठीक है, पानी का इंटेक भी प्रॉपर रखिएगा। पानी कौन सा पी रहे हो आप? आरओ वगैरह का पानी तो नहीं पी रहे हो? नहीं, अब तो मैं सारा टैप वाटर ही ले रही हूँ। टैप हम्म, वाटर में जैसे पर एक सेडिमेंट्स भी आ रहे हैं साथ साथ, तो फिर कैसे उसको वो नुकसान आप तो नहीं? स्टोर करके रख लो, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। हाँ, वो तो वैसे ही ले रही हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस पानी का इंटेक बढ़ाऊं, पर पानी का इंटेक, उससे पानी रेस्ट ज्यादा रेस्ट लेती हूँ तो वो। रेस्ट रेस्ट चाहिए अभी बॉडी को।
रेस्ट इज वेरी बार इंपॉर्टेंट। बार वॉशरूम बार बार आ रहा है, उसको कई बार तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं, आएगा, अभी स्टार्टिंग में ये सब होता है। कितने दिन हुए अभी आपको? 3-4 दिन हुए ना आई थिंक? आज मेरा 4th डे है। फोर्थ डे। 4th डे है। ठीक एक है। मुझे मतलब थोड़ा फैमिली को कुछ मुझे वीडियोस ऐसी भेजना प्लीज, ताकि थोड़ी हेल्प हो जाए फैमिली को कन्विंस करने के लिए तक, क्योंकि उन लोगों को बार बार ये लग रहा है कि आप किडनीज पे ना इफेक्ट आ जाए, ज्यादा बीमार ना हो जाओ, पहले ही वॉकर लेके चलते हो और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो नहीं नहीं, आप थोड़ा वो सा एक वो भी माइंड में ना फिर उस चीज का फियर फैक्टर सा रहता है, उसके लिए देखो, क्या करूं। फैमिली को आप कुछ भी सोचने दो, आपके माइंड में सब कुछ क्लैरिटी होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो कर रहे हो, यू हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस, एंड बिकॉज यू आर सीइंग हियर अदर्स आर डूइंग इट, और सबको इस तरह से हो रहा है। लोग तो, जी कुछ लोग तो, जैसे अमन जी से आपने बात की अभी तक? हाँ जी हाँ जी। वो तो एक बार बेहोश भी हो गए थे अपने बाथरूम में। ओ ठीक है, लेकिन हुआ था ऐसा कि कुछ था, जो उन्होंने खाया नहीं था या कुछ था, वाटर फास्ट पे थी वो, 4-5 दिन उन्होंने केवल पानी ही पिया था और कुछ नहीं खाया था। तो वो हुई और वहां पर गोली में थोड़ी देर गिरी रही, फिर उसके बाद मैं उठी और आ गई। सो यू हैव टू टेक अ वेरी वेरी पॉजिटिव अप्रोच, लेकिन आपको वो नहीं होना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई बेहोशी हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए आप रेस्ट करो ज्यादा से ज्यादा। आपको अगर उस तरह की फीलिंग लग रही है कि वीकनेस लग रही है, चक्कर आ रहा है जैसे आपने बोला, तो देन ट्राई नॉट टू गेट अप फ्रॉम बेड, और अगर आप जा रहे हो तो किसी का सपोर्ट ले लो। इट इज अ जर्नी कि आपको थोड़े से सपोर्ट की, किसी एक पर्सन से, फैमिली मेंबर के जरूरत पड़ेगी, बट दिस विल पास वेरी सून। एंड उसके बाद जो आपके अंदर स्टैमिना का इम्प्रूवमेंट, एनर्जी लेवल्स का इम्प्रूवमेंट, या आपके मूवमेंट में जो इम्प्रूवमेंट है वो आएगा, वो बहुत अच्छा होगा। एक मैं बीच बीच में खजूर ले लेती हूँ, जो बिल्कुल सॉफ्ट वाला होता है, वो ले सकते हैं? वैसे एक्चुअली तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमें यहाँ पे फ्रेश तो नहीं मिल रहा है ना, वो कहीं से आ ही रहा है। हम्म। लेकिन अच्छा। हम कुक्ड ना खाएं, उसकी क्रेविंग को वो करने के लिए अगर आपको लग रहा है वो आपको कुछ नहीं सेटिस्फाई नहीं। करता है, तो आप ले लो, वरना तो फ्रूट्स ही बेस्ट है। अब तो काफी वैरायटी भी आ गई है, मतलब ताजे फलों में भी, ऑरेंज, पपाया, जी जी बनाना, जी जी ये सब मिल ही रहा है इस समय, ग्रेप्स। जी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो बस अगर जब शरीर के हिसाब से हमें चलना है, शरीर बोल रहा है कि आराम करो, वीकनेस दे रहा है तो आराम कर लो, ठीक है? शरीर बोल रहा है काम करो, एक्सरसाइज करो, तो काम कर लो, एक्सरसाइज कर लो। बस ऐसे ही अभी चलना है। इनिशियल आपको मतलब 1-2 महीने में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इस तरह की चीजें होंगी, और एनर्जी भी वापस आएगी। ऐसा नहीं है कि ये हुआ तो ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा, आप कमजोर हो गए तो अब हम कमजोर ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रहेगा, फिर से आपका वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो डरना नहीं है, बस ये है, डर के आगे जीत है। जी ठीक है, राइट। तो डरना किसी को नहीं है, सबको चलते रहना है आराम से। और जो प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सुबह 8 बजे, दोपहर में 3 बजे, रात को 8 बजे आपका मीटिंग हो ही रहा है, आप आ जाओ यहाँ पे, बात कर लो। ठीक है, घर में प्रॉब्लम हो रही है तो हम वो भी बात कर लेते हैं कि घर में कौन प्रॉब्लम दे रहा है, इसका भी सोल्यूशन है। ठीक है। राइट। ओके। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है? अरुणा जी, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? मैम मैं यही पूछ रही थी, ये पिगमेंटेशन भी इससे ठीक हो जाता है? क्या? पिगमेंटेशन ये फ्रूट डाइट से ये ठीक हो जाता है? हाँ, पिगमेंटेशन ठीक हो जाता है, बिल्कुल। ओके, अभी जैसे मेरे को नी प्रॉब्लम भी है, हम्म। तो खाली फ्रूट डाइट से मतलब ठीक रहेगा? हाँ, क्यों नहीं ठीक रहेगा? फ्रूट डाइट तो नेचुरल डाइट है ना, ये कोई कोई स्पेशल टाइप की डाइट थोड़ी ना है जो हम कर रहे हैं कि अभी तक ये मेडिटेरेनियन डाइट चल रही थी, कीटो डाइट चल रही थी, या लो कैलोरी डाइट चल रही थी, तो हम वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा नेचुरल प्राकृतिक भोजन है, जो कि हमारे लिए ही नेचर ने डिजाइन किया है। जैसे कि शेर के लिए
दूसरे वो शेर जानवरों को मार के खाता है ना कच्चा, या अगर हम हिरन को देखें, आप किसी भी जानवर को देखो, या जितने भी इस प्लेनेट पर अर्थ पे स्पीशीज है उनको देखो, उन सबके लिए कुछ ना कुछ प्राकृतिक भोजन बना है, तो हम भी उसमें से एक ही हैं। ठीक है, हमारे लिए भी प्राकृतिक भोजन बना है। हमारा जो प्राकृतिक भोजन है वो फल है, लेकिन हम क्योंकि कुछ ज्यादा ही समझदार थे, तो उस ज्यादा समझदारी ने हमें धीरे 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 बीमार कर दिया, कि हम पकाने भी लगे, है ना, हम सब कुछ करने लगे, नमक भी डालने लगे। तो नमक और खाने को पकाना सबसे बड़ी दो गलतियां हैं। और अब आप अगर नेचर में देखोगे कि प्राकृतिक रूप से क्या है जो सबसे टेस्टी आपको लगेगा और सबसे ज्यादा आप उसको खा सकते हो, क्वांटिटी में कितना भी खा लो कुछ नहीं होगा आपको, तो वो केवल फल ही हो। इसलिए फल ही हमारा, मतलब हम लोग जो है, वी ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्रूगीवोर्स, है ना, हम फ्रूगीवोर्स है। जैसे हर्बीवोर होता है, कार्निवोर होता है, ओमनीवोर होता है, तो हम जो है वो फ्रूगीवोर्स है। हम फल खाने के लिए ही डिजाइन है, फल खाने के लिए ही पैदा होते हैं, और अगर हम फल खा रहे हैं तो हम अपने अल्टीमेट हेल्थ में रहेंगे, ऐसी हेल्थ जो आज तक आपने अपनी लाइफ में कभी फील नहीं की हो, उतना अच्छा, उतना एनर्जेटिक आपको कभी नहीं लगा हो। ठीक है मैम, कुछ फ्रूट्स सूट नहीं करते, जैसे पपाया है मेरे पेट में दर्द हो जाती है, अमरूद है, कुछ कुछ तो ऐसे हैं सूट नहीं करते। हाँ, सूट ऐसा हाँ नहीं हो जी। सकता कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को कोई फल सूट ही ना करे, क्योंकि वो हमारे लिए फल बना ही है ना। सूट इसलिए नहीं कर रहा है, मतलब सूट जो नहीं कर रहा है ये गलत सोच है हमारी, हमने जो पहले से खाया हुआ है गलत, ठीक है, उसको निकालने के लिए जब हम, क्योंकि फ्रूट्स बहुत डिटॉक्सिफाइंग होते हैं, फ्रूट्स टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं हमारे शरीर से, तो जब हम फल खाते हैं तो जो पहले से गंदगी जमा है हमारे शरीर में, उसको निकालने के प्रोसेस में वो फल लग जाते हैं। उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पेन हुआ, या थोड़ा सा वॉमिटिंग हुआ, या लूज मोशन हुआ, या वीकनेस हुआ, तो ये सब आता है। उस कंडीशन में हमें रेस्ट करना है, कोई दवाई नहीं खानी है। और अगर पेट में दर्द हो रहा है तो ये क्लियर इंडिकेशन है शरीर का कि अभी शरीर चाह रहा है आप कुछ मत खाओ, सिर्फ पानी पियो और आराम करो। ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके ओके। हाँ, अरुंधति जी आप बोलिए। फिर से ऑन रही। हाँ मैम, मैम मेरे को जैसे फ्राइडे को फीवर आया था, तो उसके बाद तो मैं वाटर फास्ट मतलब मैं कोकोनट वाटर भी ले रही थी, बट कल लिया था मैंने, उसके बाद मुझे वो भी लेने का मन नहीं किया, तो अभी तो मैं सिर्फ प्लेन वाटर फास्ट पे हूँ। तो मुझे ये, क्योंकि मुझे फीवर है हल्का हल्का, मतलब कम हुआ है लेकिन हल्का हल्का है, और बैक पेन थोड़ा होता है, जब मैं उठती हूँ ना तो बैक पेन होता है ऐसे पूरा पीछे। तो वो भी एक डिटॉक्स है या वो जस्ट एक वीकनेस दिखा रहा है, क्या है वो? हाँ, डिटॉक्स ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और फीवर आपको कितना है, आपने मेजर किया है? उस दिन था, फ्राइडे को था, अभी तो बहुत मुझे ऐसा लग रहा है 99 100 होगा, मैंने मेजर भी नहीं किया, मुझे इतनी दिक्कत नहीं लग रही फीवर की। अच्छा, मेजर नहीं किया है, तो अभी आप रेस्ट, आज तो संडे है, आज थोड़ा रेस्ट करके पानी ही पियो, आप देखो क्या है उसमें, आराम ज्यादा करो, काम मत करो आज आपको। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो और वही पानी पिया करो, जब बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंगर लगे कि नहीं अब तो हमको खाना ही है, फल देख के बिल्कुल मुंह में पानी सा आने लगे, है ना, तब आप फल खाना। तो हम अभी तो कुछ भी, मतलब कोई कुछ पूछ भी रहा है कि मार्केट से कौन से फल लाने हैं, मेरा वो भी बोलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मुंह इतना कड़वा हो रखा है, हाँ, मतलब ओके, मुंह वॉमिटिंग कड़वा जैसे हो लग रहा रहा है, है दैट मुंह दैट बहुत इज कड़वा। ऑल्सो एन इंडिकेशन कि आपको नहीं खाना है। हम लोगों का भी स्टार्टिंग में मुंह कड़वा हुआ था, जब हमने स्टार्ट किया था तो देन मुंह कड़वा हुआ था, तो मुंह कड़वा इज ऑल्सो द क्लियर इंडिकेशन ऑफ द बॉडी दैट यू शुड नॉट बी ईटिंग एनीथिंग, है ना। तो अभी आप फल ही खाओ, आज फल मंगा लो, कल के लिए आप मंगा के रखो, कल तक थोड़ा बहुत कुछ खाना आप,
और अभी पानी पियो जितना पी सकते हो, और अदरवाइज टेक रेस्ट, सो जाओ, आराम करो, इस तरह की चीजें करिए। ठीक है, हाँ मतलब हाँ, मैं रेस्ट ही रेस्ट कर रही हूँ, कल जरूरी भी है। मैंने रेस्ट ही किया था। हम्म, हाँ, कल भी रेस्ट किया था, आज भी वही कर रही हूँ। हाँ बस हाँ। वही था कि जब आप बोल रहे हैं जैसे भूख लगेगी तो ही खाओ, वरना इट कैन एक्सटेंड टू 3 days 4 days वट एवर, राइट? सी इट विल डिपेंड ऑन, जब आपके जीभ से कड़वापन चला जाएगा, मान लो अभी आपको कड़वापन लग रहा है, हो सकता है दोपहर तक ना लगे। ठीक है, दोपहर तक वो कड़वापन हम्म चला जाए और आपको भूख बहुत लग रही हो, है ना, आपको फल खाने का मन हो रहा हो, तो आप खा लेना। फीवर चेक करना है, फीवर अगर है तब तो नहीं खाना है, अगर फीवर नहीं है तो खा सकते हैं। नहीं मैम, फीवर जैसे हल्का तो है बॉडी टेम्परेचर, और साथ में पेट में भी ऊपर दुख रहा है, थोड़ा मुंह भी कड़वा हो रखा है। हाँ, तो तो पेट दुख वो रहा है और सिम्टम के हिसाब से तो अभी कुछ भी। हाँ, सिम्टम के हिसाब से अभी कुछ नहीं खाना, सही है। ठीक है। ठीक है, सिम्टम के हिसाब बैक से। पेन भी चला जाएगा फिर। हाँ जी। बैक पेन भी धीरे धीरे चला जाएगा फिर। हाँ बैक पेन। हाँ हाँ, बैक पेन भी चला जाएगा, हमेशा के लिए चला जाएगा, कभी आएगा नहीं फिर लौट के, फिर आप और ज्यादा जैसे काम गौरव कर। सर ने बोला था कि आपको, हाँ जैसे गौरव सर ने बोला था कि पेन अलग अलग जगह से निकल रहा है, जैसे स्टार्टिंग में मेरा घुटना दुख रहा था 2-3 दिन पहले, देन वो ठीक हुआ, फिर बुखार आया, हम्म। तो शायद इसके। तो टॉक्सिन्स है ना, देखो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ टॉक्सिन्स जमा है हम नहीं कह सकते, और शरीर पहले जो है ना इधर ही ऐसी जगह पर टॉक्सिन्स जमा करता है जहां से आपको थोड़ा जल्दी पता चले कि हाँ टॉक्सिन, अब ये दर्द होने लगा, है ना। या फिर इंटरनल ऑर्गन्स को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी वाइटल ऑर्गन्स है उसको शरीर प्रोटेक्ट करता है कि इस पे सबसे लास्ट में कुछ इफेक्ट आना चाहिए, तो वो घुटना, बैक पेन इस तरह से आपको होता है। तो वी नीड टू जस्ट रीड द सिम्टम्स ऑफ द बॉडी। आप अच्छे से कर रहे हो, आप कर ले जाओगे बढ़िया से, मुझे यकीन है। और सिर्फ हाँ अभी आप सिम्टम को ही सुनिए, और ये जैसे आपका नी पेन सही हो गया, नी पेन पहले आया था सही हो गया, बैक पेन आया अब सही हो जाएगा वो भी। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। यस। नूतन जी, नूतन कोरगांव, कोरगांव पर या हेलो। कैमरा ऑन कर लीजिएगा, बिकॉज आई डोंट नो यू। हाँ ठीक है, हेलो। या हेलो, नाइस टू मीट यू। आई थिंक टुडे इज माय सेकंड ये मीटिंग। कल मैंने स्टार्ट किया था, और अभी तो एकादशी स्टार्ट किया है, और एकादशी विद महाशिवरात्रि वो ट्राई किया था, तो आई वाज वेरी हैप्पी विद द फीलिंग। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हिच यू गेट व्हेन यू बिकम अ फ्रूटेरियन? मतलब आपको पर्सनल बेनिफिट्स क्या मिले? क्योंकि गेटिंग अ लाइफ टाइम fruitarian is a big task, or maybe we human people are not thinking that way because we have been evolved with eating, so many things. तो वही ना, इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन या जो खाना आपको बीमार कर रहा है, वो खाने में अगर आपको लग रहा है कि बेनिफिट है, रोटी दाल चावल सब्जी नमक घी तेल दूध दही, ये खाने में, ये इवोल्यूशन से ये चीजें आ गई है ना, और ये बीमार कर रही है, यही तो है बीमारी का कारण, और क्या है। ओके। हम्म। तो ये इसमें आपको बेनिफिट, मतलब बेनिफिट हमें देखना, एक ये सोचना हुआ कि नहीं हम तो तभी कुछ करते हैं जब इसमें कुछ बेनिफिट मिले, है ना। राइट। बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि आप अपनी नेचुरल मैम इसका पे कारण जाएंगे। ये है कि हमें बहुत एफर्ट चाहिए टू डू दिस, सो वी नीड रीजंस एफर्ट, एग्जैक्टली जो एफर्ट क्यों हमें चाहिए। अपील करे, हाँ, क्योंकि दिस हमारा इज टंग इज यूज्ड टू ऑफ ग्रेन्स, तो हमें वो एग्जैक्टली। अट्रैक्ट करता है एवरी टाइम, हाँ तो वी हैव टू फाइट विद आवर माइंड टू मेक इट अंडरस्टैंड कि जस्ट स्टॉप इट एंड वी हैव टू बी ऑन फ्रूट्स बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। हाँ, तो अभी आप जब अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्लान करते हो, ये बनाना है वो बनाना है, इनके लिए ये बनाना है उनके लिए वो बनाना है, तो भी तो आप फाइट ही करते हो ब्रेन से। लेकिन वो टंग अट्रैक्ट करती है ना, टंग इज वेरी हैप्पी, या यू मेक इट।
है ना? You take the effort because I like it. तो टंग है, और आपको इतना इतना कुछ, इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है, नहीं ये बनाऊं, ये हेल्दी होना चाहिए, इतना हेल्दी बना दूं, नहीं आज ये खाने का मन है, ये अच्छा है। तो ये सारी चीजें तो चल ही रही है ना दिमाग में, और ये ज्यादा डिफिकल्ट काम है मुझे लगता है एज कंपेयर टू फल खाने से। उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको फल लेके आने हैं। उसमें आपके बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट, आपके हस्बैंड सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि नेचर ने हमें वैसे ही डिजाइन किया है, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं डिजाइन। पर हम क्योंकि प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, और हम फंसे रहना चाहते हैं, हम निकलना ही नहीं चाहते हैं। एंड इफ यूर लाइक बेनिफिट्स की बात करें, तो हम जब अपने नेचुरल डाइट पे जाएंगे तो हमें बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव होएगी। मैम जैसे अब इसमें कैल्शियम मिलेगा, will it like joints के लिए जो बोलते हैं कैल्शियम चाहिए? बिल्कुल मिलेगा, सब कुछ मिल रहा है। आपको पता है लोग 10 साल से फल खा रहे हैं, और उनकी एज है 70 साल, और वो दौड़ रहे हैं, मैराथन कर रहे हैं। आप दौड़ पाओगे 70 साल में? Can we have like videos or anything like that so थोड़ा और क्लियर हो सके? कैन यू हैव कोई वीडियोज? वीडियोस हो उनके या कुछ? देखो, वीडियोस आप देखना, फेसबुक ग्रुप है हमारा, वो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? देर आर सम पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु हैव हील्ड देयर कैंसर्स, ट्यूमर्स बाय ईटिंग ओनली फ्रूट्स, एंड दे आर ईटिंग फ्रूट्स ओनली, है ना? तो यू विल गेट टू नो, वो आप फेसबुक पर ही बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपको यूट्यूब जो चैनल है गौरव गोयल सर का, उस पे भी मिलेंगी। You can see all those things. I will share few of the links in the groups in which you all are. नूतन जी, आप एकादशी वाले ग्रुप में? यस यस में तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें शेयर होती रहती हैं। फेसबुक में कौन सा, मतलब क्या नाम से है फेसबुक में? फेसबुक में ईट फ्रूट्स एंड हील है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेसबुक? आई विल शेयर द लिंक, है ना? मैं दोनों ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैम तो while eating fruits जूस भी अगर कभी इच्छा हो तो पी सकते हैं ना? हाँ हाँ, फ्रूट का जूस निकाल के आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायबिटीज अच्छा, वन मोर थिंग इज दैट अभी मैं तो आई एम अ swallowing थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, तो मेरा पेशेंट्स ज्यादा कैंसर और पैरालिसिस स्ट्रोक पेशेंट से जाना उनका ये होता है, यू नो आई गेट इन्वॉल्व विद देम। तो आप दैट्स व्हाट फ्रॉम सुबह का डिस्कशन से आई केम टू नो दैट sometimes the body tells you to rest. So, if my patients are struggling and then I cannot have rest in that way. तो वो रेस्ट पीरियड कितना दिन का होता है? We cannot define anything, on this journey. Might be आपको कोई भी सिम्टम नहीं आया, आपकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही, ठीक है? ऐसा भी हुआ है कि लोगों की 10 मेडिकेशन से 0 मेडिकेशन हो गई है, और उनको कोई भी सिम्टम नहीं आया है अभी तक, और वो अपना ऑफिस भी जाते रहे, सब कुछ करते रहे, और बहुत अच्छे से सारा उनका जर्नी निकला। ओके, अभी नाउ इन माय केस आई एम लाइक मुझे TSH मेरा 11.0 to 11.7 तक अटका हुआ है, वो कम ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। In that case, like कितना दिन में like it can come to normal thyroid? ये जेनेटिक भी है, मेरे पेरेंट्स को भी था, दादी को भी था। जेनेटिक तो हमारा किचन होता है ना, इसीलिए हो जाता है सब। ओके। डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करती हैं आप? पर मैंने काफी कम किए अभी। डेयरी, कॉफी, ग्लूटेन, नॉनवेज, ये 5 चीजें ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है। और ये थायराइड अगर है तो ये कभी खानी ही नहीं चाहिए। राइट, ठीक है? बट वो बोलते हैं कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड ऑल दिस स्पिनच, दे टॉक ऑन दैट वेज ना। वो भी मत खाइए, हम तो फल ही खाने को बोल रहे हैं ना, हम और कुछ कहाँ बोल रहे हैं खाने। इनफैक्ट डॉक्टर से कि रोज आपको छाछ पीना है when you have thyroid in the afternoons. I know, but they will give you medicine also, no? And I'm telling you to stop the thyroid medicine from today if you are starting your food journey. Yeah, I have to stop, but I'm now getting duration. अभी मैं सोच रही हूँ अभी कभी कौन से ड्यूरेशन में चालू करूँ। मे बी एकादशी में नेचुरल उपवास अभी मेरे ब्रेन ने सोचा है तो मे बी उस दिन से I'm going to start my ये फ्रूट का completely.
People have stopped this thyroid medicines from day one when they have started fruit diet with us. और ऐसे 10 Yeah, that is मतलब true. बहुत लोग हैं क्योंकि सभी को मोस्टली थायराइड है। एक ममता जी हैं, उन्होंने 125 mcg वो ले रही थी, पहले ही दिन से छोड़ दी उन्होंने। ठीक है, फिर अभी तो पारुल है, उसने तो वेट भी लूज किया है। शी हैज अपलोडेड और वो ऑल्सो वीडियो भी उसने अपना डाला है, तो उसने भी मेडिसिन छोड़ दी, वो भी कुछ 75 mg कुछ ले रही थी। तो वो तो आप डे वन से स्टॉप कर सकते हो अगर आप फूड डाइट करो। और टीएसएच की जो दवाइयां भी दी जाती है ना, वो मोस्टली गलत दी जाती है, क्योंकि सिर्फ आपका टीएसएच देखा जाता है। फ्री T3 फ्री T4 टेस्ट कराया है आज तक आपके डॉक्टर ने? या इट इज नॉर्मल, वो दोनों नॉर्मल है, सिर्फ अगर वो टीएसएच दोनों मेरा नॉर्मल है तो आपको दवाई की जरूरत ही नहीं है। ओके, बट TSH आई is कैन thyroid रियलाइज stimulating hormone which stimulates our thyroid gland to release T3, free T3, like T3 as in total, जो कि free T3 और free T4 होता है। Now T3 is the important hormone. T3 ही सारे काम कर रहा है, जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, एंजाइम्स को कंट्रोल करना है, वो कर रहा है। अगर वो सफिशिएंट है तो दवा क्यों खा रहे हैं? T4 बट वो मुझे रिजर्व में रहता है। जब T3 जैसे जैसे T3 की कमी होती है तो T4 गेट्स कन्वर्टेड इनटू T3, है ना? तो आपको तो मेडिसिन बट आई रियलाइज द सिम्टम्स लाइक बाल ये होना, फॉर हेयर फॉल इज देयर व्हेन आई डोंट टेक दीज टैबलेट्स। सेकेंड थिंग, मेरा बॉडी वेट तो फ्लक्चुएटिंग रहता है अराउंड 65 to 68 में मैं that is यू नो because आई of गो the ऑन। diet, that is because of छाछ and दही which you are taking or tea that you are drinking। ऐसी चीजें आप ले रहे हो अपने डाइट में जो नहीं है, नहीं आपको ले। मेरा टीएसएच भले नॉर्मल टीएसएच इज अप टू 5.5 समथिंग और मेरा 11.7 है, तो अगर T3 T4 इज नॉर्मल देन आई एम नॉट सपोज टू टेक टैबलेट Yes, नॉर्मल I टाइम have आल्सो। seen TSH goes up to the levels of 180 and 200 also. Nothing happens to the person. कुछ ओके, नहीं, कोई सिम्टम क्योंकि नहीं। वो बोलते हैं कि इट अफेक्ट्स योर हार्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। कुछ नहीं होगा, आप शुरू करो आराम से और सब फ्रूटेरियन कुछ करना छोड़ दो। अभी एकादशी के टाइम में स्टार्ट करूंगी, क्योंकि वो भी मेरा बॉडी का सेट हो गया है कि एक फास्टिंग है तो नेक्स्ट डे आई कैन इमीडिएटली फास्ट। आपके जितने भी सिम्टम्स हैं वो भी चले जाएंगे। स्किन ड्राई होती है, हेयर फॉल होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, सुबह में थोड़ा सा वो लगता है, लो फील होता है, रात को अच्छा लगता है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं ना थायराइड, तो ये सब हाँ सही हो जाएंगे। ओके। मैम वाटर फास्ट कैसे आपको मतलब बेटर करता है? क्योंकि जनरली सब बोलते हैं पानी तो बहुत पीना चाहिए, बहुत पीना चाहिए। वाटर फास्ट कैसे? पानी के बगैर तो हाउ कैन इट हेल्प यू, लाइक हाउ कैन इट हील विदाउट वाटर? नहीं, पानी तो पीना ही है, पानी कब मना किया? आपने वाटर फास्ट बोला ना कुछ। वाटर फास्ट मीन्स यू हैव टू ड्रिंक ओनली वाटर, इट्स नॉट दैट कि पानी से ही वो फास्ट कर देना है। अच्छा, मतलब पानी पीना है। आई थॉट यू डोंट हैव टू ड्रिंक वाटर। No, no, you have to drink lots and lots of water, only water. You don't have to eat even fruits. Okay, Okay, Yeah, one more I thing, a patient with misunderstood. yeah, severe no. insulin also can get into being a fruitarian diet। Who? इंसुलिन रहेगा और पैनक्रियाज के इश्यूज रहेंगे, उनका कुछ टिपिकली कुछ खाएंगे तो पैनक्रियाज में कुछ तो देयर इज स्कार इन द पैनक्रियाज एंड लीकेज एंड ऑल दोस थिंग्स हैपन। तो सीवियर इंसुलिन में भी दे कैन गेट इनटू फ्रूटेरियन डाइट। हाँ, they can. ओके, See, बट वी ये नीड टू किसी मॉनिटर। तरह की ना डाइट नहीं है, ये क्या है कि हम अपने सिर्फ नेचुरल जो हम खाने के लिए बने हैं उस पे जा रहे हैं, है ना? बस हमारे अंदर जो इतने सारे फियर्स हैं या जो इतनी सारी कंडीशनिंग कर दी गई है हमारी बचपन में, परिवार के थ्रू, फिर उसके बाद डॉक्टर्स के थ्रू, फिर हमारे सोसाइटी के थ्रू, उन सारी चीजों को हमें अनलर्न करना है। क्योंकि वो चीजें हम करते आ रहे हैं, लेकिन हम तो बीमार हैं, हमें तो थायराइड है, हम तो थोड़ी दूर चलते हैं तो थक जाते हैं, है ना?
तो ये तो ह्यूमन मतलब आइडियली अगर एक ह्यूमन बॉडी है तो आप कितना भी चलते रहो, हाँ बिल्कुल थकेंगे, बट जितना जल्दी अभी लोग थक जाते हैं 5 स्टेप जीना चढ़े और थक गए, या हमें गोलियां खानी पड़ रही, तो हम मेडिसिन खाने के लिए थोड़ी ना ईश्वर ने डिजाइन किया था हमें। पर कुछ लोग इसी में संतुष्ट रहते हैं, अरे एक गोली तो खानी है, नहीं लेकिन हमें जो मन है वो तो हम खाएंगे, आज ये बनाएंगे, कल ये बनाएंगे, परसों ये बनाएंगे। एंड उसी के पीछे अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम मेंटली भी इतना परेशान होते हैं। अब हमें काम पे भी जाना है, हमें बनाना भी है, या हमें काम पे नहीं भी जाना है, घर में ही रहना है, तो जब देखो हर समय किचन में बनाते रह, एंड दैट इज मेकिंग यू इल। इट इज सेड द लीस्ट टाइम यू स्पेंड इन द किचन द मोर हेल्दी योर फैमिली विल बी। जितना आप कम टाइम किचन में बिताएंगे उतनी ज्यादा हेल्दी आपकी फैमिली होगी। अब कम टाइम बिताने का मतलब ये नहीं है कि लाके सारे पैकेज्ड फूड्स रख दिए और वही फैमिली खा रही है ना, कि बिस्किट खा लिया मिक्सर। अपना नेचुरल चीजें खानी है आपको, जो नेचर हमारे लिए डिजाइन करके दिया है। इट इज कुक्ड बाय सन, सन पहले से ही कुक करके दे रहा है, तो उसमें एनर्जी है, राइट। उसमें May I एनर्जी know your name, ma'am? लाइफ है। ओके। रेनू जी कुछ बोल रही है क्या? May I know your name, ma'am? माय नेम इज आयुषी। Nice आयुषी, meeting you. थैंक यू। ओके। ठीक है नूतन जी, तो हेलो। बिना डरे तो स्टार्ट वन मोर करिए। थिंग, हम्म एक्सरसाइज भी मुझे बंद करना पड़ेगा अभी, बिकॉज आई एम डूइंग रूटीन एक्सरसाइज ऑल्सो एवरी डे, दैट्स व्हाट, क्योंकि बॉडी एक्सरसाइज बंद नहीं करना पड़ेगा। व्हाट यू कैन डू इज कि जब बॉडी बोलेगी, क्योंकि ये हमारा हीलिंग फेज है, हमने जो भी हमारी एज है उतने साल गलत खाना खाया है, गलत चीजें खाई हैं, जो हमारे सिस्टम में टॉक्सिन्स के रूप में इकट्ठा है, इसीलिए हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। या तो किसी अगर कोई दवाइयां नहीं खा रहा है तो उसको पेन रहता होगा, जरा सा भी सीजन चेंज होता होगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाती होगी, पीरियड्स होता होगा तो बड़ा पेनफुल होता होगा। ठीक है, तो ये चीजें होते आ रही हैं और इतने सालों से होती आ रही है। तो अभी जो फेज शुरू होगा, जब आप फ्रूट्स पे आओगे तो बॉडी डिटॉक्स करना शुरू करेगी। तो उस कंडीशन में किसी दिन आपको बहुत अच्छा फील होगा। जनरली थायराइड के केस में सबको बहुत अच्छा फील होता है ना, आपको एक अलग सी एनर्जी मिलेगी। फिर कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें आप लो फील करोगे, माइट भी थोड़ा सा बहुत फीवर आए, कफ आए, कोल्ड आए, हेडेक आए, तो यू जस्ट हैव टू टेक रेस्ट। उस दिन आपको रेस्ट में भी थोड़ी देर ही रेस्ट करके आपको आराम मिल जाए, और फिर आप आफ्टर एन आवर और सो यू विल बी फाइन। इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी इन द बॉडी, कि आपका जो डिटॉक्स सिम्टम है वो कैसा आ रहा है। राइट, लाइक माय फर्स्ट मंथ वाज सच दैट आई ऑलवेज वांटेड टू लाई डाउन, कि थोड़ा लेटे ही रहे, ऐसा ही लगता था। 1 महीने तक थोड़ा ऐसा रहता था, बैक पेन भी धीरे धीरे रहता था, ये आईज वाइज सब पे एकदम इचिंग, पूरे बॉडी में बहुत इचिंग, पूरे बॉडी में खुजली होते रहती थी, छोटे छोटे विजुअल रेड इश्यू रेड से भी डॉट्स आए। क्लियर होता है क्या इसमें? विजन ऑल्सो, बिकॉज आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड विद नजदीक का दिखता नहीं है, तो दैट ऑल्सो गेट्स क्लियर इन दिस। हाँ, we at 60 years of age, Pinky जी is there in the Mumbai group, Mumbai Flotarians group. I think वो फलाहार वाले ग्रुप में भी होंगी, एकादशी में भी है वो। तो उन्होंने अपना चश्मा हटा दिया। उनको वो पहले मतलब जो फॉन्ट साइज पहले नहीं पढ़ पाती थी, अभी वो पढ़ लेती है। उनके हस्बैंड ने का भी चश्मा हट गया। ओके। उसका एक सेशन भी हमने किया है कुछ आई एक्सरसाइजेस का, दैट इज आल्सो ऑन यूट्यूब, गौरव गोयल सर के चैनल पर वो भी है। ओके ओके, बिकॉज आई ट्राई टू फाइंड, बट गोयल सर का मुझे एक ही मिला नहीं यूट्यूब आई विल में। शेयर यू कैन सब्सक्राइब इट, तो आपको फिर समझ में आएगा उसमें। डन। ओके डन, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो जस्ट स्टार्ट इट विदाउट एनी फियर एंड बिलीव इन द प्रोसेस। फ्रूट्स लेके आइए खूब सारे और शुरू करिए। आज कल एकादशी मत सोचिए, आज ही से सोच लीजिए, अगर इन सारी चीजों से आपको छुटकारा चाहिए तो। राइट, एंड यू नो इट हैज हेल्प्ड अ आई नो लॉट आई नो। and few patients with
शोर नहीं करो. With this mental illness also, even in the cases of depression and all, they have left their medicines. ठीक है? Okay. So just start it and Yeah, keep yeah, done. updating. Thanks a lot. Yeah, अपने मील्स वगैरह आप लोग yeah, अपडेट करते definitely. रहेंगे ग्रुप में, तो हम लोग थोड़ा सा वॉच कर पाएंगे. Yes. अगर कुछ स्टेप लेने की जरूरत है तो we will tell you. Okay? Okay, done. Yeah, thank you. Okay, thank you so much. Anyone else has any question? Thank you, ma'am. Thank you so much everyone for joining. When can we contact you, like in the afternoon or evening, as you said? Like 3 p.m. there will be meeting by sir himself. Every day 3 बजे यही वाला लिंक रहेगा और 3 बजे सर मीटिंग लेते हैं और फिर रात को 8 बजे वो अमन जी मीटिंग लेते हैं और सुबह मैं लेती हूँ. तो आप Same तीनों link टाइम पे? सेम लिंक पर सेम लिंक. Okay. Thank you. ओके. कोई नया ज्वाइन कर रहा है आई थिंक. अनिला बहन. देख लेते हैं इनका कुछ क्वेश्चन तो नहीं. I think she is unable to connect. Okay, thank you so much everyone.